Okay, okay. Thank you. Yes, students, please start. Ma'am, am I audible? Yes, yes. Good afternoon to our resource person, Mr. Subin S.K. sir, our faculty coordinator, Ms. Shraddha More ma'am, and to all the audience who are attending this workshop. It gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome on behalf of the Information Technology Students Association of St. John College of Engineering and Management, who, in collaboration with Google Developer Students Club, who have plugged all of us for a 2-day workshop on building a Next.js and GraphQL app using NASA's Space API. I would hereby like to welcome and introduce you all to our resource person, Mr. Subin S.K. sir. Some of you might already know sir, as he had previously conducted a 3-day hands-on session on MERN in our college in September 2021. For the uninitiated, sir is from the CSC department of College of Technology and Engineering, Udaipur. Sir is a MERN developer, community contributor, and co-founder of Metrics.io, as well as the lead of the Google Developer Students Club. His achievements include a third position in OctaHex 2.0 hackathon, first position in HackJNU 2.0 hackathon, and he has also secured a top 10 position in Cicada 3301 Reinvented Hackathon. Before the start of the session, I hope that everyone attending have an IDE and Node installed in their system. Now, I would like to request Subin sir to kindly take over the session. Over to you, sir. Hello, am I audible? Can anyone confirm? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you, Srinivas, for the introduction. Hi, everyone. As Srinivas introduced me, I'm Subin S.K. And today, as the poster suggests, I'm going to mentor you all to build a Next.js and GraphQL app and using NASA's Space API. So before we start the session, let me go through the title which we are doing today. So आपको पता ही है कि अभी जो करंट सिनेरियो है जहाँ पर टेक्नोलॉजी इज इमर्जिंग डे बाय डे so people are inventing new things, new technologies are coming, React was developed before 3 4 5 years, developed before, but it came into action in 3 4 years, and after that people start building on the top of React library. So आप देख सकते हो कि एक एक दिन आप बढ़ बढ़ के चीजें और इमर्ज हो रही है और इवॉल्व हो रही है. So if you are attending previous year sessions, you will be attending React sessions, but in today's modern day, you will be attending Next.js and modern technologies like fast API. So this kind of things are getting more popular. So हमें भी पता होना चाहिए ना कि इन चीजों का क्या मोटिव है, कि इन चीजों को अभी क्यों आगे लिया जा रहा है. तो उस चीजों को हम अभी आगे डीप डाइव करेंगे. तो may I share my screen, please? Okay, thank you. Just a second, guys. I guess my screen is visible to all. Is it visible? Yes, sir. Visible. Okay, cool. So we have two terms here, Next.js and GraphQL. So first let's deep dive into Next.js. What is Next.js? What is that technology? So basically Next.js is a framework, JavaScript framework, means that framework is being built on with the help of JavaScript language, and it is built on top of React. Now what that means, देखो Facebook ने what happened in history, when Facebook was developed,
देयर वर लाइक जब उन्होंने अपना ऐप बनाया था उनमें काफी कंपोनेंट्स थे, जैसे लाइक, कमेंट, शेयर, और फिर पोस्ट आ गए, फिर कैराउजल्स आ गए उनके, और काफी सारे फीड्स के फीचर आ गए। तो एक एक फीचर्स जब बनाने लगे तो उनको ऐसी नीड आई कि उनके पर्टिकुलर कंपोनेंट जो बना रहे हैं उनके लिए एक सेपरेट लाइब्रेरी हो। तो दे बिल्ट अ सेपरेट लाइब्रेरी ऑन देम, एंड देन दे फेल्ट कि उस लाइब्रेरी को ओपन सोर्स किया जाए। और उसी वजह से द रिएक्ट वाज फाउंडेड। रिएक्ट इज एन ओपन सोर्स लाइब्रेरी व्हिच इज बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। उसमें हमें पर्टिकुलर कंपोनेंट्स मिलते हैं, लाइब्रेरी मिलते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट टास्क को सिंपल वेज में हमें यूज करने के लिए प्रोवाइड करती है, जो कि रिएक्ट करती है। एंड व्हाट हैपेंड कि जब रिएक्ट यूज होने लगी, फिर हमें ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें रिएक्ट में भी मैनुअली करनी पड़ती हैं। जैसे व्हेन वी बिल्ट ए रिएक्ट ऐप, वी हैव टू डू राउटिंग, जैसे आप करते हो जैसे www.google.com, ओके, देन उसके बाद यू विल गो इनटू स्लैश सर्च, फिर अपनी क्वेरी लिखते हो। तो जैसे वो राउट आप लिखते हो आगे वाली सर्च की, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको सेपरेट राउट्स का डेफिनेशन अलग से लिखना पड़ता था, जो कि रिएक्ट में होता था। बट Next.js क्या करता है, उस चीज को सॉल्व करता है कि यू हैव टू जस्ट स्पेसिफाई, यू हैव टू कि ये राउट इस कंपोनेंट में होगा और ये हो जाएगा। एंड वो चीज अभी जब अपन हैंड्स ऑन अपन कोड करेंगे, वो चीज अपन देखेंगे कि क्यों वो इतनी चीज यूजफुल हुई है। ओके, सो एंड सेकंड थिंग ये कि मोस्टली ये स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए यूज किया जाता है। ऑल्दो दिस कैन बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस, बट स्टैटिक वेब एप्स के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी है। लाइक इफ यू आर प्लानिंग टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो एंड लाइक समथिंग लाइक ब्लॉग और व्हाट, तो आप Next.js पे बिल्कुल बना सकते हो। इट्स सुपर इजी। एंड अगर मैं आपको बताऊं, मेरा खुद का पोर्टफोलियो Next.js पे बना है, एंड आई विल शेयर दैट लेटर। So it is that useful. And let's deep dive into what are the technical terms in which it is beneficial to us. So first is hybrid of server side rendering, SSR, and static side generation, SSG. And अब ये आपको नाम देखते लगे ये क्या चीज है, तो लाइक देखो छोटे छोटे टर्म्स में अपन इसको तोड़ेंगे, then we will understand one by one. So first coming into hybrid means it is a mixture of server side rendering. Now what is server side rendering? See, we have two things here. Like आपका एक पोर्शन होता है जो आप यूजर हो। आप यूजर जब आप google.com में गए, तो जो आपको जो इंटरफेस दिखता है, जो सामने आप जहां कीबोर्ड से टाइप करते हो, जो दिखता है आपको, जो यूजर को दिखता है, जो एक्सपीरियंस होता है उसको, वो चीज होती है क्लाइंट। ओके, एंड व्हाट इज सर्वर? when you type a query and that query runs behind the scenes and it pulls out the results, जो वो सारी चीजें होती हैं वो आपको दिखती नहीं, वो चीजें होकर आपको सिर्फ रिजल्ट शो होता है। तो वो जो चीजें होती हैं वो होती है बैकएंड में। यानी एक एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, उसको जो उसका फ्रंट एंड पार्ट है वो आपको दिखेगा, और जो बैकएंड में जितनी भी प्रोसेसेस हो रही है वो सारी सर्वर पे होंगी। तो दिस आर द टू पार्ट्स ऑफ एन वेब एप्लीकेशन, क्लाइंट एंड सेकंड थिंग इज आवर सर्वर। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड इन रिएक्ट कि रिएक्ट एक तरह से फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, टू बी स्पेसिफिक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। उसमें यू कांट रन लाइक ऐसा आपको करना हो कि वो एप्लीकेशन रन हो रही है, आज आपने उस एप्लीकेशन से एक टास्क किया और 24 आवर्स के बाद उसी एप्लीकेशन को दूसरे कोई टास्क करना 24 आवर्स के बाद, है ना। लाइक आज आपके पास कोई न्यूज चैनल है, लाइक यू आर अ सीईओ ऑफ ए न्यूज चैनल। नाउ व्हाट यू आर थिंकिंग कि आज कोई मर्डर केस हुआ है, उस मर्डर केस को आज फ्लैश किया, एंड आफ्टर 24 आवर्स आप चाहते हो कि वो ही फ्लैश न्यूज कल भी हो, एग्जैक्टली 24 आवर्स। तो वो प्रेजेंट टाइम को अगले वाले टाइम के जो जितना भी यानी 24 आवर्स है उसके बाद वो फ्लैश करना चाहिए। तो ये जो फंक्शनैलिटी है वो React.js में नहीं होती है, बिकॉज उसमें आप चीजों को सर्वर के थ्रू रन नहीं कर सकते, यानी इट कैन नॉट लिसन टू एवरी टाइम, बिकॉज इट बिल्ड्स फ्रंट एंड साइट्स। यानी आप कुछ क्लिक करते हो, देन इट गिव्स द रिएक्शन, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम तक जब तक आपके वेबसाइट आपके ब्राउजर पे वो लोडेड है तब तक वो चलेगा, एंड इफ यू क्लोज दैट मतलब उसकी जो सारी चीजें वो फंक्शनलिटी बंद हो जाती है। दैट इज द केस ऑफ रिएक्ट। बट जब Next.js बिल्ट हुआ तो उसमें एक चीज है, क्यों ना हम सर्वर साइड चीजों को, यानी सर्वर साइड से जब आप जैसे बात कर सकते हो कि आप कुछ डेटा है, आपके पास कुछ डेटा है, जैसे कि लाइक आई सेड बिफोर न्यूज चैनल है, तो न्यूज चैनल में कुछ आपको फ्लैश करना है, लाइक बॉम्बे में आज हो रहा है फ्लड, टुडे इज heavily raining and it is flood today in Mumbai, so you have to flash this.
तो either you can bring that thing to the front end from the server and show it. Okay, this is the one case. What is the second case is कि आप सर्वर को जब अपना पेज लोड हो उससे पहले ही सर्वर के पास वो चीज रख दे कि भाई मैं जब भी वेब पेज पे आऊं उससे पहले तो ये चीज रेडी रखना कि देयर इज रेनिंग इन मुंबई एंड इट इज फ्लड का वो पूरा हो चुका है मामला, तो ये चीज पहले से रेडी हो। तो व्हाट मतलब इसका बेनिफिट क्या है कि जब भी आप जैसे आप देख रहे हो अमेजोन पे, जैसे आप अमेजोन खोलोगे फटाफट तो यू विल बी लाइक कि उसका नया बार एकदम से शो हो रहा है और जो साइड की चीजें वो पहले शो हो रही है, बाकी जो चीजें वो बाद में शो हो रही है। तो जो सबसे पहले शो हो रही है यू कैन स्पेसिफाई दैट थिंग इन द सर्वर साइड कि हाँ चलो यहाँ से ये चीज पहले दिखनी चाहिए यूजर को, ताकि यूजर पहले से इंटरेक्ट करने लग जाए। और ऐसा माना जाता है कि एक पेज यानी एक वेब पेज पे यूजर का एवरेज टाइमिंग होती है कि जब तक वो रिस्पॉन्स करे विच इज 8 सेकेंड्स, यानी 8 सेकंड तक अगर उस पेज पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो वो बंदा उस अगर पेज पे नया है, मतलब वो पेज पे नया न्यूली विजिट कर रहा है और 8 सेकंड तक उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, देन ही विल रिमूव, मतलब वो टैब वो बंद कर देगा। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए देयर इज सर्वर साइड रेंडरिंग देयर। एंड व्हाट इज स्टैटिक साइड जनरेशन? सी जैसे मैंने बोला कि आप पोर्टफोलियोज बनाते हो, तो पोर्टफोलियोज में बहुत सारी चीज होती है, जैसे कि लाइक यू हैव डिटेल्स अबाउट योर सर्टिफिकेट्स, लाइक आपने कितने अकम्प्लिशमेंट्स किए, लाइक मैंने ये हैकाथन जीता है, मैंने इस इवेंट में ये वाला पोजीशन किया है। तो सोचो ये वाली साइड आपने कहीं दूसरी जगह पे स्टोर किया हुआ है, यानी आपके ऐप में नहीं है, इट इज स्टोर्ड समवेयर एल्स। एंड व्हाट यू वांट इज कि जब भी वो पेज लोड हो उसके उस जो पोर्शन है उस पोर्शन पे वो स्टैटिकली आ जाए वहां पर। मींस लाइक जो आप जैसे अमेजोन देखते हो तो अमेजोन में जो चीज लोड हो रही होती है धीरे 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 करके, जो इमेजेस लोड हो रही होती है, जो इमेजेस लोड हो रहे थे, क्यों ना वो इमेजेस सर्वर साइड रेंडरिंग के अलावा स्टैटिकली पहले से वहां मौजूद हो। देयर इज टू डिफरेंसेस हियर। सर्वर साइड रेंडरिंग क्या करता है, आपको पर्टिकुलर वेरिएबल्स हो गए, पर्टिकुलर थिंग्स हो गई जो वेब पेज लोड होने से पहले they give it to you. And what static site generation is, it gives an whole HTML page, like वो पेज वो पूरा लाके दे देगा कि ये लो आपको। That's the thing here. Okay, I hope it is clear to you, and if it is not clear to you, don't worry, जब अपन कोड करेंगे I will show you कि what is the difference between that. Okay, so let's move forward to next point, which is like built-in image component automatic image optimization. See, कोई भी वेब पेज हो गई या भी कोई भी डायनामिक वेबसाइट, मतलब कितनी भी अच्छी चीज हो, उसका मेन पॉइंट होता है व्हाट आर यू शोइंग टू द यूजर। तो यूजर को अट्रैक्ट करने की द मोस्ट गुड वे इज लाइक कि मोस्ट बेटर वे इज पिक्टोरियल थिंग्स, लाइक पिक्चर्स शो करो, उनके ग्राफ्स शो करो, यानी अल्टीमेटली यू हैव टू शो एन इमेज। तो ये वाला पोर्शन एक वेब ऐप के लिए बहुत क्रूशियल हो गया था। पर जब भी जैसे कोई अच्छे लाइक आपके पास अच्छे एचडी इमेजेस हो और जो आप फिर वेब पेजेस पे आप शो करना चाहे, तो फिर लाइक 1 MB की फाइल हो गई, 2 MB की फाइल हो गई, तो वो चीजें लोड होने में टाइम लगती थी बहुत। तो उस वजह से यूजर, मैंने जैसे बोला 8 सेकंड्स का टाइम था, उसको उस टाइम तक कुछ दिखता ही नहीं था कि वहां हो क्या रहा है। तो उस टाइम पे उस इमेज को जल्दी से जल्दी शो करने के लिए वी हैव इमेज ऑप्टिमाइजेशन व्हिच इज इंटीग्रेटेड इन Next.js. ओके, ये चीज भी अपन यूज करेंगे तो लाइक यू विल गेट मोर आइडिया, यानी यहाँ भी जो भी चीजें मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ वो चीज अपन वहां भी देखेंगे। ओके, कूल। नेक्स्ट इज API routes, like easy creation of API endpoint as a Node.js serverless function. See what is it is written here, like what is API routes, what is an API? Anybody in chat can like say what is an API? अगर किसी को आता है व्हाट इज एन एपीआई, लाइक कुछ भी सुनाओ, कहीं भी सुनाओ, व्हाट इज एन एपीआई? guess yeah, exactly, application pro like it is an interface, application programming interface, but still what it is like उसमें क्या चीजें होती है, like what it is used for, what is an API? like आपको a way to communicate with backend. Yeah, correct answer Sini. So API is what, like you have an, like मैंने जैसे बोला था, a web app have two things there, client, a server, means एक front end एक back end.
फ्रंट एंड वो चीज होती है जो यूजर के साथ मतलब इंटरेक्ट करती है, सर्वर इज लाइक जो सारा पीछे का खेल है वो करती है। देयर आर टू थिंग्स। तो उन दोनों को जोड़ने की जो चीज होती है, यानी उन दोनों को लाइक कम्युनिकेशन जो बैठाती है, वो चीज होती है एपीआई राउट्स। सो वो वाली जो चीज है वो चीज इंप्लीमेंट होती है Next.js में, और थ्रू अ Node.js serverless function। सो एज आई सेड, फ्रंट एंड जो भी अपन बनाते हैं जैसे रिएक्ट हो गया, तो उसमें सर्वर आप नहीं बना सकते थे, यानी एक जो चीज कंडीशन थी कि भाई 24 आवर्स बाद वो चीज नहीं हो सकती, मतलब जो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करता जाए पीछे बैकग्राउंड में रन हो, वो वाली चीज नहीं हो सकती थी रिएक्ट में। बट Next.js provides a serverless function which what it like it runs for a particular time, like जैसे 24 आवर्स हो गया ना, वैसे एक पर्टिकुलर टाइम तक वो रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट इट विल नॉट रन लाइक कि हाँ बस एक बार रन कर दिया फिर छोड़ दो वो चलता रहेगा, नहीं। इट विल रन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। लाइक आपकी एक बार आपने आपकी रिक्वेस्ट भेजी कि भाई फ्रंट एंड मैं हूं और मैंने मेरी सर्च क्वेरी है कि आई वांट बेस्ट कोर्सेज ऑन यूडेमी फॉर लाइक डीएसए कोर्सेज, है ना। तो उसको अगर अगर वो 10 सेकंड लेता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, है ना, 10 सेकंड वो बैकएंड से कम्युनिकेट करने लगता है, तो वो 10 सेकंड के लिए इट विल होल्ड द बैकएंड ऑफ Next.js टिल दैट टाइम। ओके, so this is what a serverless function do. Now second thing is community support. As you know कि Next.js is gaining more and more popularity, so community के अंदर बहुत सारे contributors हैं जो उस चीज को अभी भी support कर रहे हैं, जो bugs हैं उनके सारे solve हो रहे हैं। तो like अगर आज की डेट पे आप ये सीखना स्टार्ट करते हो तो it will be very beneficial to you, और आप कहीं भी नहीं फंसोगे। Okay, I hope it is clear to you. If there is any doubt, you can put in the chat. Let me move forward. ओके, सो GraphQL से पहले चलो थोड़ी कोड, इतना मैंने बोल दिया, आप कितनी सर्वर साइड बता दी मैंने, इमेज के कंपोनेंट, ये वो बहुत सारी चीजें बता दी। क्यों ना इस चीजों को लाइव देखा जाए, ठीक है। तो उससे पहले लाइव देखेंगे, अभी जस्ट अ सेकंड, प्लीज होल्ड ऑन गाइस, लाइव देखेंगे। बट उससे पहले एक और चीज, कि हमारे टाइटल में एक और चीज थी, what we are doing today, like we are building a Next.js and GraphQL app, but it is using NASA's API. So what is happening here ki NASA provided us a API in which they regularly update latest their like space images and with their latest news. तो हम क्यों ना हम एक वेब ऐप बनाएं जिसमें नासा के लेटेस्ट न्यूज़ेस और उनके जो लेटेस्टली अपडेट हो रहे हैं उन चीजों को अपन अपने वेब ऐप पे शो करें, अपना खुद का एक प्रोजेक्ट हो गया एक तरह से। तो दैट इज व्हाट वी आर बिल्डिंग टुडे। सो let me share my screen of Chrome in which I will show how to get that API कि कोई भी API उसको कैसे fetch करें। जब अभी ये सिर्फ NASA के API के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बट कोई भी आप इन फ्यूचर जब भी आप कोई वेब ऐप बनाओ, अगर आपको कुछ API उसमें यूज करनी है, यानी लाइक उसमें मतलब कहीं की कुछ भी डेटा यूज करना है, मतलब कोई डेटा कहीं वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं APIs, तो उन डेटा को कैसे अपने वेबसाइट में यूज करना है वो चीज भी आप आज सीखेंगे। सो लेट मी stop this screen. Let me share my Chrome where I will show you the, just a second guys, तब तक कुछ भी डाउट हो प्लीज पुट इन द कमेंट्स, if there are any confusions there, anything if you want to ask, please ask. Just a second. Okay, sharing my screen here. Okay, I guess it is visible. I'm reading NASA's API. So as you can see, I have written NASA API. आप भी अपने अगर आप अपने PC पे हो, you can do it also. So there is a link, NASA's open APIs. So let me click on this. Okay, it is opening. Okay, so what we are like, अब यहाँ पर बहुत सारे APIs, यानी यहाँ NASA ने बहुत सारे APIs यहाँ प्रोवाइड की गई हैं, तो उनमें से अपन जो आज यूज करेंगे, which is like, अब नीचे नीचे आओगे
ब्राउज एपीआईज, तो इधर उन्होंने बहुत सारे एपीआईज यूज किए. तो वी आर यूजिंग टुडे इज एस्ट्रोनॉमी पिक्चर ऑफ द डे, यानी डेली बेसिस पे नासा अपडेट थिंग एक पिक्चर जो कि उस दिन की पर्टिकुलर बेस्ट पिक्चर होगी एस्ट्रोनॉमिकल व्यू से. तो सी कुछ अपन को ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा जिसमें एक इमेज होगी और उसका कुछ डिटेल होगा और देन उसका कुछ टाइटल होगा. ठीक है, अब देखो इधर बहुत सारी चीजें दिख रही है, तो लाइक डोंट कम, मतलब आप देख के डरिए मत, वी विल डू दैट थिंग. सो फर्स्ट थिंग, जब भी आप अपने एपीआई को एक्सप्लोर कर रहे हो तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, नीचे आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे देयर इज एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट थिंग. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द थिंग वी विल यूज, यानी ये जो यूआरएल दिख रही है https, यहाँ ये वाली जो चीज है, अगर ये अपन इस चीज पे अपन रिक्वेस्ट्स मारेंगे, रिक्वेस्ट्स डालेंगे, यानी वी हैव गेट रिक्वेस्ट, वी हैव पोस्ट रिक्वेस्ट. सो व्हाट इज गेट रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट क्या होती है? लाइक आप इस यूआरएल को बोल रहे हो भाई देख मेरे को आज की एस्ट्रोनॉमिकल की पिक्चर दे, यानी यू आर रिक्वेस्टिंग मींस प्लीज यू कैन यू गिव a picture like the astronomical picture of the day of NASA. So इस URL पे वो चीज मिल जाएगी. Okay, and here you can specify what is the mode of that request, which is get request, and this is the URL we can see here. Okay, नीचे क्या दिख रहा है? अगर if you can like अगर आपको आज की नहीं मतलब कहीं और किसी और दिन की आपको चाहिए पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉमी, तो वी कैन यूज देयर इज लाइक डेट है, स्टार्ट डेट से एंड डेट से, इन दोनों के बीच में कितने सारे इमेजेस हैं वो आप रिट्रीव कर सकते हो, बहुत सारे और चीजें. पर इसमें हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा, यानी मेन जो थिंग रहेगी वो रहेगी एपीआई की. सो व्हाट इज दिस? सी होता क्या है कि लाइक दिस इज एन लाइक मैंने अभी गूगल पर सर्च किया कि नासा की एपीआई चाहिए एंड दे गिवन मी द यूआरएल व्हिच इज पब्लिक टू ऑल, यानी कोई भी उस चीज को यूज कर सकता है. बट व्हाट हैपेंस इज लाइक कभी कभार कोई भी मस्ती में आकर सोचो अगर इसने इस जो यूआरएल पे मल्टीपल रिक्वेस्ट पर सेकंड डाल दी, यानी 1000-2000 रिक्वेस्ट पर सेकंड, यानी पर सेकंड में इतने रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली डाल रहा है, तो इससे क्या होगा, इनकी जो वेबसाइट होगी यानी इनकी जो वेब ऐप होगी वो पूरी तरह से क्रैश हो जाएगी. तो उस वजह से दे पुट एन ऑथराइजेशन की, यानी ये की होगी तभी आप इसमें इतने रिक्वेस्ट्स मार सकते हो, मतलब आप इतने मतलब इसको एक्सेस कर सकते हो. यानी अगर इफ यू कैन सी, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, okay, let me I guess I have to share the whole Chrome, just a second. ये तो आपका न्यू टैब नहीं दिखेगा. Okay. Okay, I guess it is visible now. ठीक है. So like if I am copying this, and pasting it here, let's see what it gives. Like get request वो होती है जो आपके वेबसाइट में आपके वेब ऐप में वो चीज शो होती है. तो what is here happening here? देखो इस यूआरएल पे ये कह रहा है कि API की is missing, no API key was like supplied, get one at this, यानी बेसिकली आपको कोई भी API यूज करनी हो, पब्लिक API, यानी कुछ APIs होती है जो बिना API की चलती है बट वो कोई लिमिटेड अमाउंट में, यानी आपके आईपी एड्रेस को वो ट्रैक करके बता देता है कि भाई हाँ इतना मतलब अमाउंट का ही आप रिक्वेस्ट मार सकते हो. बाकी जो जैसे ये APIs हैं उनमें API में एक पर्टिकुलर पोर्शन यानी एक पर्टिकुलर चीज आपको पास करनी होती है व्हिच इज एन API की. Now what is an API key? Which is it is an authorization token for that कि उस API को आप एक्सेस कर सकते हो. तो for that कि like डेमो पर्पस के लिए like it has like इन्होंने एक चीज कही है कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है, like डिफॉल्ट वो होती है कि जो इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक है, यानी डिफॉल्ट में अगर आप डालोगे तो डेट आज की आएगी, स्टार्ट डेट बिल्कुल नहीं है, एंड डेट आज की है, मतलब आज की पिक्चर आएगी डिफॉल्ट में. और आपको इस चीज को चेंज करना है तो इन क्वेरी पैरामीटर से चेंज करते हैं. तो और उसी चीज में एक चीज आती है वो API की. सो व्हाट इज एन सो API की में इन्होंने डिफॉल्ट ले ली डेमो की. लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट इन द ब्राउजर. व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम पासिंग if it will work or not, I guess the request में वर्क करना चाहिए मे बी. let's
इट इज लोडिंग, सी अब वो एरर नहीं दे रहा है कि एपीआई की इज मिसिंग। नाउ व्हाट वी डन इज यहाँ पर हमने ये चीज को एक क्वेरी पैरामीटर पास कर दिया विच इज एन एपीआई की, और उसमें हमने डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी डेमो की, यानी डेमो की के द्वारा हम एक बार में 1000 रिक्वेस्ट्स मार सकते हैं, यानी 1000 रिक्वेस्ट्स इज नॉट लाइक इट विल नॉट अफेक्ट द वेब ऐप, सो दे गिवन दैट कि हाँ 1000 तक का तुम मार सकते हो, उसके बाद तुम्हारी ये चीज ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो हियर वी कैन सी दैट कि अगर एक बहुत सा बड़ा सा कोड दिख रहा है आपको, बहुत सारी चीजें, बट बेसिकली आप अगर ध्यान से देखोगे इट हैज एन इनिशियल ब्रैकेट हियर एंड एंडिंग में एक ब्रैकेट है दिस, एंड ये जो होता है इसे कहते हैं जेसन ऑब्जेक्ट। सो इट इज एन जेसन ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स, लाइक देखो व्हेन यू आस्क अ रिक्वेस्ट, यानी मतलब अगर आप एक रिक्वेस्ट मारते हो तो इन रिटर्न यू विल गेट एन रिस्पॉन्स। तो हमने इस यूआरएल में एपीआई की को डाला, भाई देख हम ऑथराइज हैं, हम कोई भी गलत काम करने नहीं आए हैं, हमें सेशन लेना है, देखो है ना। तो उसके लिए वी हैव पास द एपीआई की एंड देन वी हैव रिक्वेस्टेड थ्रू द गेट रिक्वेस्ट, है ना, गेट रिक्वेस्ट किया हमने, और उसके रिटर्न में इट गिव एन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में दिया उसने, स्टार्टिंग और एंडिंग में ब्रैकेट्स, व्हिच मींस इट इज अ जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हियर वी कैन सी कि अपने पास कॉपीराइट है, जैसे यानी जेसन में एक और चीज होती है, जब ऑब्जेक्ट व्हाट एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ कर्ली ब्रेसेस एंड उनके बीच में वी हैव अ की एंड अ वैल्यू, यानी नेम देन सुबिन देन कॉलेज देन सीटीआई, है ना, देयर विल बी अ की एंड देयर विल बी अ वैल्यू। ओके, तो आप देख सकते हो कॉपीराइट एक की है, उसकी वैल्यू होगी गेराडो फरेनो। ओके, देन वी हैव एन डेट की, जो कॉमा सेपरेटर, देखो कॉमा जहां आया इट शिफ्टेड टू नेक्स्ट थिंग, तो नेक्स्ट थिंग क्या अपना डेट, फिर वो एक की है, देन आफ्टर दैट इट हैज अ वैल्यू व्हिच द डेट स्पेसिफाइड डेट। तो ये सारी चीजें, अब ये जो आपका इंफॉर्मेशन आया है वी विल यूज दैट इन आवर कोड, यानी हम इस चीज को एक्सेस करके अपने वेबसाइट यानी वेब ऐप जो नेक्स्ट जेएस का ऐप बनाने वाले हैं उसमें हम देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। तो एज आई मेंशन बिफोर द सेशन, लाइक मैं ये आशा करता हूँ कि सबके पास एक आईडी होगी, कोई भी आईडी यूज कर सकते हो, VS कोड, एटम, एनीथिंग यू वांट, सबलाइम, एनीथिंग, एंड प्लस आपके अंदर Node.js इंस्टॉल्ड होना चाहिए, और Node.js अगर इंस्टॉल नहीं है तो यू कैन सिंपली लाइक टाइप हियर लाइक Node.js और उनकी वेबसाइट मिल जाएगी, एंड देन देयर इज अ सिंपल लिंक कि उसमें से आप लाइक इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप अभी किसी के पास इंस्टॉल नहीं है तो ही और शी कैन इंस्टॉल। ओके, कुछ ज्यादा नहीं, लाइक इट हैड लाइक वर्जन दिस इज, ये थोड़ा अनस्टेबल वर्जन है बट इट इज द मोस्ट स्टेबल वर्जन, तो आप इसमें क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हो Node.js। ओके, आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माय पीसी, so I will directly move forward into the VS Code वाला part। ठीक है, तो let me switch to my editor। और अभी तक कुछ भी कंफ्यूजन है प्लीज पुट इन द चैट्स, अगर नहीं है तो प्लीज से हाँ सर समझ में आ गया, डन, एक थम्स अप, प्लीज पुट थम्स अप इन द चैट प्लीज, सो दैट आई कैन सी कि हाँ पीपल आर व्यूइंग मी। मैं ऐसे ही नहीं बोला जा रहा, कुछ भी बोल दिया मैंने, बहुत कुछ, कुछ भी ऐसा थोड़ा भी मतलब कुछ डाउट सारे पूछो यार, पूछना ही था। देखो ऐसे मतलब आप कॉलेजेस में पढ़ते हो दैट्स फाइन, बट व्हेन यू टेक, मतलब मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब मैं ऐसे सेशंस लेता था, तब मेरा कंसर्न रहता है पूछूं यार नहीं पूछूं यार, कुछ ऑकवर्ड तो नहीं हो जाएगा। बट फिर ये चीज रहती है कि अगर आप उस टाइम में नहीं पूछोगे देन इट विल रिग्रेट, मतलब वो चीज फिर बल्क में रह जाएगी, अरे यार वो तो पूछा ही नहीं, मेरे को समझ में ही नहीं आया, फिर आगे भी वही डिफिकल्टीज आएगी। अगर कुछ भी अभी है तो प्लीज आस्क दे नाउ, और कुछ लाइक आपको कंफ्यूजन है कि सर ये क्या बता रहे, सर ये ऐसा तो होता ही नहीं, ऐसा होता है, देन प्लीज टेल, वी कैन सॉल्व दैट आल्सो, बिकॉज लर्निंग इज टू वे, लाइक मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, गेट दैट पॉइंट, कि मेरे को ऐसा नहीं है सिर्फ समझाने से, मेरे को भी आप कुछ बोलोगे तो मेरे को भी अच्छा हाँ यार ये चीज ऐसा हो सकती थी, तो आई विल आल्सो लर्न ऐसा। ओके, मोस्ट ऑफ द लाइक पीपल आर ऑसम, लाइक उनको सब आ रहा है, नाइस, ओके, दे आर अटेंडिंग वेल। ओके, सो चले कोड पे, अभी थोड़ा कोड करते हैं, व्हाट डेवलपर्स डू। ओके, लेट्स सी। ओके, लेट मी स्विच टू माय IDE। I basically use VS Code। If you can use whatever you want, like मतलब जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उस चीज को आप यूज करते हैं। लेट मी शेयर विंडो में वी
want this one, I guess it is now visible. ठीक है, let me create a folder, यानी मैंने कुछ नहीं किया, आई एम ओपनिंग अ फोल्डर इन VS Code, ठीक है, मैं फाइल में गया, फिर उसके बाद उसमें ओपन अ फोल्डर एंड नाउ हियर आई एम क्रिएटिंग अ फोल्डर with my project. So right clicking here, okay, where is new here? Oh, here it is. So I'm creating a folder, क्या नाम दे, Next.js GraphQL. Okay, ठीक है, I'm selecting this, selected the folder. ठीक है, okay, now we got the editor here. चलो अब so here अब पहली चीज ये होती है कि देखो, अब we have two terms here, Next.js and GraphQL. So हम इन दो टेक्नोलॉजीज को कैसे यूज करने वाले थोड़ा उस पे अपन फोकस करते हैं. तो Next.js में Next.js प्रोवाइड सर्वरलेस, मैंने जब अभी बताया सर्वरलेस Node.js फंक्शंस, यानी आप API रिक्वेस्टर्स के लिए आप सर्वरलेस चीजें बना सकते हो. यानी Node.js में अपन क्या करते हैं, एक सर्वर बनाते थे, यानी वो 24 आवर्स यानी 24/7 आवर्स हर टाइम ऑलवेज इट लिसन्स टू योर रिक्वेस्ट्स, ठीक है, वो होता था Node.js सर्वर. बट व्हाट वी आर डूइंग इन Next.js इज इट इज सर्वरलेस. मतलब सर्वरलेस मतलब हर बार वो आपको लिसन नहीं कर रहा, आप जब रिक्वेस्ट मारोगे then it will initiate and it will listen to your request, it will process the request and then it will give you the response. ये होगा आपके Next.js में. and Node.js में क्या था, it will listen to all the time, और जब भी आप रिक्वेस्ट करो आपको रिस्पांस मिल जाए. so this is the difference between server and serverless. अगर अभी भी समझ नहीं आया तो प्लीज आस्क, क्योंकि इट इज अ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइक जो अभी चल रहा है. लाइक आप जब आप क्लाउड की चीजें पढ़ोगे, जैसे थोड़ा बियॉन्ड आगे की बात करते हैं, सी व्हेन यू गो, मतलब आप जब कंपनीज में जाओगे बड़े बड़े जगह पे, जब आपका प्रोडक्ट है, यानी आप जो चीज पर काम कर रहे हो वो चीज आपके प्रोडक्शन स्केल पे चलेगी, then you will switch into cloud functionalities. Now in the cloud functionality, वहां पर जब आप पहले क्या होता था कि आप we have to like borrow, sorry, you have to rent a virtual सर्वर, यानी जो आप सर्वर इधर सेटअप करो, एक मशीन डाल दी, उस मशीन में सारा फंक्शंस डाल दिए, नहीं, आप वर्चुअल सर्वर कर सकते थे जिसमें वो हर टाइम वो चलता था और आपका फंक्शन रन करता था. पर उससे क्या वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था. यानी ऐसा था कि आपको ये चाहिए कि मेरी एक कॉलेज की वेबसाइट है, उसमें मेरे को जब एग्जाम्स होंगे तब मेरे को लोग ज्यादा उसको इंटरेक्ट करेंगे और उसमें पर्टिकुलर गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट यानी उनमें वो इंटरेक्ट कराएंगे, तभी उसका जरूरत है. तो तब तक वो VMware को रन करके और इतना पैसा देके क्या मतलब. तो फॉर दैट थिंग अब कॉन्सेप्ट केम सर्वरलेस थिंग. यानी सर्वरलेस वो होता है कि उसमें पहले से वो राउट्स बने हुए सेम एज इट इज a Node.js सर्वर, बट उसमें ये होता है कि वो हर टाइम नहीं चलता, वो जब भी आपको रिक्वेस्ट दो इट विल गिव द रिस्पांस, बस दैट्स इट. मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो करेगा और वो चीजें नहीं करेगा जो सर्वर करता था. यानी कि हाँ चलो 24 घंटे बाद ये अपने आप इनिशिएट कर देना ये चीज, क्योंकि वो चीज हर बार चलती रहती तो वो इनिशिएट कर देना, तो वो वाली चीज उसमें नहीं होती थी. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि व्हाट इज सर्वर एंड सर्वरलेस फंक्शंस. तो इन Next.js वी विल बी यूजिंग सर्वरलेस फंक्शंस. ओके, अब वो दिखाऊंगा कैसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू क्रिएट अ नेक्स्ट ऐप. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द कमांड हियर. सो we will be using like, एक सेकंड, आई थिंक माय स्क्रीन is something work नहीं कर रहा. Let's see. I guess. Okay. Okay, I guess it is now working. So what I was saying कि we will be like node तो क्या हो गया जिसमें सारी अपने फंक्शंस रन होंगे ना, मतलब जितनी भी फंक्शनलिटी Next.js सारी चीजें उसमें रन होंगी. बट जब अपन कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं, कुछ चीज इंस्टॉल करते हैं नोड के रिलेटेड, देन वी विल यूज अ पैकेज मैनेजर. नाउ व्हाट इज अ पैकेज मैनेजर. पैकेज मैनेजर कंसिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट फाइल्स, यानी जितनी भी आपको चीजें डाउनलोड करनी है वो पैकेज मैनेजर में स्टोर्ड है. यानी मैं कुछ पैकेज बना रहा हूँ कि
मैं ये पर्टिकुलर फंक्शन बना रहा हूँ कि इससे स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई भी एक स्ट्रिंग गिवन है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मैं एनपीएम के रजिस्ट्री में जाके, यानी वेबसाइट है, अगर मैं आपको बताऊं इधर, अब मैं बता नहीं सकता एक्चुअली, आई विल टेल अबाउट दैट कि npm इज अ पैकेज मैनेजर, यू कैन सर्च इन योर गूगल एंड उसमें सारी चीजें लिस्टेड होगी, अब यू हैव टू राइट ओनली npm इंस्टॉल एंड योर पैकेज नेम, कि कुछ भी इंस्टॉल करना है कि GraphQL तो npm इंस्टॉल GraphQL ऐसा कुछ, ठीक है। सेम गोज फॉर कि अब वो जब टाइम हो गया देन फास्टर वे कम ऑन, कि लाइक वो चीज बार बार लोग यूज करते थे, तो उसके लिए पर्टिकुलर डिफरेंट पैकेज मैनेजर यूज होने लगा विच इज npx, तो आज हम npx यूज करेंगे। तो टर्मिनल में जाते हैं। ओके, सो एक थिंग यहाँ करते हैं कि हमारा जो ये नाम है फोल्डर, इसको अपन कॉपी करके रखते हैं। अब क्यों कॉपी कर रहे हैं, आई विल टेल अबाउट दैट। ठीक है, सो हम एक फोल्डर नीचे आएंगे। व्हाट इज सीडी, मैं टर्मिनल से काम करूंगा, लाइक बी विथ मी। व्हाट इज सीडी, सीडी इज लाइक करंट डायरेक्टरी, सीडी फुल फॉर्म इज करंट डायरेक्टरी, इट इज अ लिनक्स और बैश कमांड, मतलब टर्मिनल कमांड यू कैन से। तो इट हेल्प्स अस टू मूव विद इन डायरेक्टरीज, यानी आप जैसे cd डॉट डॉट करोगे, cd डॉट डॉट का मतलब होता है एक डायरेक्टरी पीछे, यानी ये Next.js GraphQL पे है, ये कहाँ आ जाएगा, आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। सो व्हाट हैपेंस, इट मतलब ये आ चुका है आपके डेस्कटॉप पे, ठीक है। सो अगर आप वापस वो करोगे Next.js, तो वापस वो फोल्डर पे आ जाएगा, सिंपल एज दैट, नो कंफ्यूजन, ठीक है। तो हमें एक फोल्डर बाहर जाना है, यानी जो ऐप हमने जो फोल्डर नाम बनाया था उससे एक स्टेप बाहर आना है। नाउ व्हाट विल बी राइटिंग इज npx create next app, okay, @ now it is an important term जो बहुत जन omit कर देते हैं, which is @latest। now @latest is कि भाई जो कि सबसे बेस्ट वर्जन है जो अभी चल रहा है करंटली, वो चीज आएगी। बाकी उसमें क्या आएगा, स्टेबल वर्जन आएंगी, और कभी कभी स्टेबल वर्जन ब्रिंग, मतलब कभी कभी स्टेबल वर्जन ब्रिंग चेंजेस। इट इज एन आयरनी, क्योंकि बहुत जगह अपन देखते हैं कि स्टेबल वर्जन आर लाइक नाइस, कि उसमें चीजें चल जाती है, बट बहुत सारे दूसरे जो npx के पर्टिकुलर पैकेजेस हैं वो जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उन पे ज्यादा चलेगा। तो फॉर दैट वी हैव रिटर्न क्रिएट नेक्स्ट एप @latest, एंड जो फोल्डर का नाम आपने बनाया था उसी नेम से बनाना, ताकि उसी के अंदर ये चला जाए, नहीं तो नया फोल्डर बन जाएगा, है ना। ये क्या करेगा, नेक्स्ट ऐप का पूरी जितनी फाइल्स हैं वो एक फोल्डर में डालेगा। अगर वो फोल्डर नेम आपने पहले जो बनाया था उसका वो रखा, देन इट विल बी देयर। लेट मी पुट इट, तो चलो अब ये तब तक हो रहा है, यस। ओके, टिल देन कुछ भी आपको अगर डाउट्स हो तो पुट इन द कमेंट्स, मतलब पुट इन द चैट, तब तक ये हो जाएगा। तो हाँ, वन मोर थिंग, okay, now it is asking for a consent, so we will simply say yeah, why it is installing create next app, and see the version is 12.3, the latest version. So and what is it installing, देखते हैं अपन क्या क्या install कर रहा है। See, it is built on React, so it is installing React। See, as I said before, it is installing React DOM and Next also, okay, it is built on that। let it install, और तब तक आप भी अगर आपके पास अभी सिस्टम है तो इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दीजिए। Sir, या can you show the inputs code again? Oh, and the terminal code? Yes, sir. Yeah, sure. Let me put it in the comments. Sorry, the chat box. Wait a second. Okay. Yeah. So it is in the chat box. You can there, और जो लास्ट में Next.js GraphQL ऐप लिखा है वो आपके
आपने जिस फोल्डर के नाम से बनाया बस उसको उधर से रिप्लेस कर दीजिए प्लीज. So what happened here? Let me see. Okay, it is installing now. ठीक है, let it install. और एंड तब तक सी अब देखो, हाँ अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एक फाइल बन चुकी है अपने फोल्डर में, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. सो एवरी फाइल इन Node.js, यानी Node.js के बेसिस पे जितने भी फ्रेमवर्क्स बनी है, रिएक्ट एक्सप्रेस से जो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क से जो एप्स बनती हैं, है ना, रिएक्ट पे, Next.js पे, Next.js एंड मेनी मोर, तो उन सब के अंदर एक चीज कॉमन होती है, इट इज package.json. नाउ जेसन व्हाट इज, अब इस जेसन से आपको याद आएगा आई टोल्ड बिफोर कि जेसन इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, है ना. इसमें की वैल्यू पेयर्स दिखेंगे. जैसे अब मैं इसको क्लिक करके ओपन करूंगा, ओह सी हाउ इट, सी इट इज कूल, है ना, द लोडिंग बार. ओके, सो सी या देयर इज लाइक की वैल्यू पेयर्स. तो यहाँ पर देयर इज एन ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड एंडिंग कर्ली ब्रेसेस, मतलब ये जेसन है, ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट है. नाउ इट हैड name ki what is our app, name of our app, what is our version, private room and many more things, है ना. उसके बाद there are scripts, like what are the scripts are कि इन scripts के द्वारा ही अपना app run हो. and if we have dev here, we have build here, we have start here, we have many more. अब इस चीजों के बारे में बात करेंगे. Then we have a section called dependencies. Now what is dependencies? Dependencies are that thing कि इस ऐप को चलाने के लिए कौन कौन सी चीजें अपन को चाहिए, वो चीज स्पेसिफिक, यानी क्या क्या चीज इंस्टॉल होगी वो यहाँ चीज स्पेसिफिक होनी चाहिए, है ना. अगर मैं यहाँ से रिएक्ट डॉम हटा दूंगा ना तो पूरा ऐप क्रैश हो जाएगा. क्योंकि इसके डिपेंडेंसीज में ये रिएक्ट डॉम स्पेसिफाइड ही नहीं है, तो वो उस चीज को यूज ही नहीं करेगा. ओके, सेम थिंग गोज फॉर एनी अदर पैकेज वी विल इंस्टॉल हियर. ओके, okay, let it install. थोड़ा टाइम ले रहा है but it will, please bear with it. काफी सारी चीजें इंस्टॉल करता है, यानी सारी जो चीजें हैं जो ये चीजें इंस्टॉल करता है वो आती है यहाँ पर node modules. It's a folder. Here we can see जितने भी रिएक्ट, जैसे रिएक्ट के जितने भी डिपेंडेंसीज फाइल्स हैं वो यहाँ इस रिएक्ट वाले फोल्डर में देखो, you can see here. इसका खुद का एक पैकेज जेसन है. सी हर एक पर्टिकुलर फोल्डर का भी खुद का पैकेज जेसन है कि वो कैसे चलेगा, मतलब वो एक पर्टिकुलर खुद एक ऐप है. Here we have bin, इसमें bin में we have external things. Here we have scripts, lib and many more things. यानी node modules में जितने भी आपके इंस्टॉल होंगे वो सारी चीजें यहाँ होंगी. It is taking a while. Till then, let me see कि यहाँ पर मीट में कितने लोगों को जावास्क्रिप्ट आती है, मतलब कितना आता है. लाइक रेट योरसेल्फ ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 एंड पुट इन द चैट बॉक्स कि आपको जावास्क्रिप्ट कितनी आती है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10. जस्ट अन्य नंबर की 5 6 7 8 9 कितना. एंड इफ यू डोंट नो नथिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट, जस्ट say 100 out of scale. New to JavaScript. Oh, Sankalp is 100. Ritesh is 100. सब सेंचुरी वाले हैं. Inspired by Kohli. 1.0. Something new here. Is it a float value, Dhruvesh? Are you trying to write 100 and then you convert it into float so that it looks cool? 1.00. Okay, Sakshi is in. Okay. Some people are new to JavaScript, I guess. No issues. जिसको भी JavaScript नहीं आती है, बेसिक अगर आपको प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स पता है कि व्हाट इज ए वेरिएबल, व्हाट मतलब कैसे सिंटैक्स वर्क करता है, मतलब मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा कि ये पीस ऑफ कोड, ये लाइन ऑफ कोड कैसे वर्क कर रहा है, कि वो चीज कैसे रन हो रही है, वो सारी चीजें हो जाएंगी. ओके, यश पुरोहित इज ऑन 7. नाइस. ओके, सो कूल. तो अभी स्क्रीन पे देखते हैं अपन क्या हो चुका है अपन का. द Next.js is created successfully.
सो अब क्या करना है कि हमें जो फोल्डर बना उस पर जाना है, क्योंकि अपन ने क्या किया था, एक फोल्डर बाहर आए थे, फिर कमांड लिखी थी चलो भाई बना Next.js ऐप क्रिएट करो, अब उस जो बना है उस पर चलेंगे एंड create, oh sorry, what it was is Next.js GraphQL. ओके, अब यहाँ पर आ चुके हैं, अब कुछ नहीं करना है, मैं सिंपल इसको आप बंद करता हूँ. Now let me run a command here. npm run. Now npm is a package manager, I told, which is used to install, but apart from installing things, it also used to run scripts in Node.js frameworks libraries. यानी npm use होता है चीजों को इंस्टॉल करने में, plus it can run scripts also. And what was npx? npx is a modern way of npm, like it works on cache memory, and थोड़ा अलग concept, but it is a modern thing. उससे भी पैकेजेस इंस्टॉल होती है. वी हैव npm run here and we will write, अब देखो npm is a package manager, then we will run, वो क्या करना है, npm run. अब run क्या करना है, अब ये चीज होगी, अपने package.json में जाएंगे हम. package.json में हम देखेंगे we have scripts here. So what are the scripts? First is dev, then we have build, then we have start, then and lint. Now what dev is, dev का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट, यानी आप जब ऐप बना रहे हो तो यू आर इन द डेवलपमेंट स्टेज, यानी आप उस चीज को, आप एज अ डेवलपर उस चीज को डेवलप कर रहे हो, ठीक है. तो अभी उस चीज का यूज होगा, तो वी विल राइट द स्क्रिप्ट npm run dev. तो वी विल राइटिंग npm run dev. अब इस npm run dev से क्या होगा, कमांड रन होगी next dev. व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो कमांड. तो वी लाइक अब अगर मैं इधर लिखने जाऊं तो यू हैव टू राइट कि npm run next dev. तो इससे अच्छा वी आर राइटिंग कि सॉरी वी हैव टू राइट next dev. तो इससे अच्छा अपन एक शॉर्ट फॉर्म उनको देते हैं कि npm run dev. ओके, तो वी हैव लाइक, अब उस चीज को रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, आई गेस आई ओनली showed the VS Code window. Let me share again, यार. I have to share whole screen, your my entire screen. Come on. लो, आपको भी लग रहा हो कितनी बार रीशेयर और स्क्रीन शेयर करेंगे ना. प्लीज बेयर विद मी. विल बी, अब जब रिजल्ट आएगा, जब ये ऐप बनेगा, यू विल बी लाइक, हो यार कितना अच्छा सेशन. यू विल बी लाइक कि खुद का ऐप बन गया. ओके, सो सी नीचे what is in the terminal is starter server on 0.00. now what is this? This means a universal IP address. Universal IP address, or you can say खुद का IP address, अभी खुद पे, यानी it is running on local host, यानी ये अपने मशीन पर रन हो रहा है. it is run started on this and the URL is this. मतलब इस URL पे ये अपना चीज है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, अपना ऐप. तो लेट मी क्लिक ऑन दिस. लेट्स सी कहाँ जाता है ये. इसको बुलाना पड़ेगा मुझे. अरे यार, ओके, this what was the URL is http localhost and 3000. देखते यहाँ क्या आता है. See, we have our next app running. Okay, we have created a next app और हमने सिर्फ एक कमांड चलाया npm run dev and your next app is live on the screen. If anyone have any confusions, please ask कि हाँ मेरा रन नहीं हो रहा, कुछ इशू आ रहा है तो बता दीजिए प्लीज. If अगर सबका रन हो रहा है then put a thumbs up. Yes, it is running. Okay. Tools are taking time to install. Okay. Cool. कोई बात नहीं, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे में भी लगा था. For the initial time.
Yash Purohit had successfully installed it. Cool. You guys are awesome. Like कितना active हो तुम? I like love the enthusiasm in yours. यहाँ चलो कुछ सीखना है, करना है, hands on कर रहे हो, बहुत सही चीज है. It will help you a lot. Sir, error is showing in npm run dev. What is it like? What is the error? You can tell me, or like you can paste the error in the chat. I can resolve it later. ठीक है. ओके. सो मोस्टली लोगों का रन होना स्टार्ट हो चुका है, तो इट विल टेक अ टाइम. तो ठीक है, वो आप कर दीजिए, उतारेगा. What is this? No such file directory. No, this is not implementable file. I guess you have something error regarding your package.json file. So एक बार वापस उस चीज को डिलीट करो, then try to reinstall. Okay. कभी कभी सी, अब देखो जैसा आपने सी यूजर्स में चलाया ना, कभी कभी वो चीज नहीं चलती है. ट्राई टू रन इन लाइक इन योर डी ड्राइव और इन विच ओएस इज नॉट इंस्टॉल्ड. बहुत बार एरर्स आती है बहुत लोगों की. ओके, तो वो चीज आप चेंज करके देखो. आपने जो हार्ड डिस्क जो है, मतलब जिसमें ओएस नहीं है, उसमें एक बार इंस्टॉल करके देखो वापस, इट विल रन. ठीक है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब अपन आते हैं द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी हियर. जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, अब उस पे अपन फोकस करेंगे. तो द फर्स्ट थिंग नेक्स्ट, इस पे अपन को फोकस नहीं है ना. अपन का जो फोकस होगा मेन अपना होगा पेजेस पे, और एक होगा next.config.js. तो फर्स्ट आई विल मूव इनटू पेजेस. तो देखो पेजेस में क्या दिख रहा है अपन को. यू हैव a folder named API and one second. The internet is quite lagging. Okay. Now it's perfect. So we have API here. Now in the API folder, there is app.js. Now what app.js here does this, like if you can click here, like if you can open the file folder, you can see here you have a function name. Yani like in the first line you have a CSS file imported here, which is your globals.css file, and in the Nichala portion you have a function called myapp. Yeah, Divyanshu Mittal, I will solve your query after this thing. We will surely come into that. Okay. So see, यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं देखने का. देखो इधर क्या दिया हुआ है. You have a function. Now what a function does is, जिनको JavaScript नहीं आती थी उनके लिए बता रहा हूँ. What a function does is कि यहाँ पर you have a keyword is, कि उसका पहले सिंटैक्स बता देता हूँ, फिर वो क्या करता है बताता हूँ. फंक्शन बेसिकली फंक्शन आपको पर्टिकुलर टास्क करने में हेल्प करता है, राइट. तो इधर आपका नाम, आपका एक चीज है कि फंक्शन, कि ये चीज फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है माई ऐप, एंड दिस पोर्शन जो ब्रैकेट्स के अंदर है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है, ये दिस इज कॉल्ड प्रॉप्स, प्रॉपर्टीज. यानी दिस इज द आर्ग्यूमेंट वी पास टू द फंक्शन. यानी जब आप फंक्शन रन करते हो, उस फंक्शन में ये चीजें डलती हैं और इन चीजों का यूज करके आप फंक्शन के अंदर काम करते हो. ठीक है. तो these are called props और arguments. और नीचे we are returning a component. Now what it is, like ये क्या है, कुछ थोड़ा अपन समझने की कोशिश करेंगे. See what, अगर किसी को HTML आती हो, I will tell a thing कि आप HTML में h1 टैग कैसे लिखते थे. अभी इधर क्या होता था कि we have a like we are less than our symbol, then we have the tag name. What is the tag name here? h1. And then after that we have the closing tag, and इसके बीच में हम कुछ भी लिखते थे hello. ठीक है. फिर उसके बाद अपन उसका ending tag लिखते थे.
ठीक है, एंडिंग जो एलिमेंट था पूरा वो लिखते थे। अब इसमें देखो टैग का नेम क्या है, h1, ठीक है, और इन द सेम मैनर ये भी एक वेब ऐप है, इसमें भी पेज रेंडर और वेब पेजेस लोड होंगे, तो इसमें जो चीजें रेंडर होंगी वो भी HTML एलिमेंट्स टाइप होंगी। बट नेक्स्ट ऐप, Next.js और जब जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज आने लगी तो उनमें पर्टिकुलर कस्टम हम टैग्स बनाने लगे, और वो टैग्स क्या होते थे, कंपोनेंट्स होते थे। यानी सोचो मैं इनको मतलब h1 हेलो है ना, एक सेकेंड, मतलब ये 3 हेलो है, इन 3 हेलो को मैं एक कंपोनेंट बना दूं, मतलब एक चीज में रैप कर दूं फिर इसको यूज करूं। तो दैट आइडिया केम इनटू द जनरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट, राइट। तो हम एक कंपोनेंट बनाने लग गए जो कि सेम एक HTML एलिमेंट जैसा ही होता था, जिसमें देयर इज अ लेस देन साइन, देन वी हैव कंपोनेंट हियर, एंड हियर वी कैन पास व्हाटएवर प्रॉप्स, यानी फंक्शंस में भी प्रॉप्स पास होते हैं, HTML टैग्स में भी प्रॉप्स पास होते हैं। लाइक इफ यू कम हियर एंड यू कैन, इफ लाइक ये लोडिंग हो रहा है तो इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं अबाउट कंट्रोलर, देखा, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसे कहते हैं प्रॉप्स, यानी प्रॉपर्टीज है इस h1 टैग की, है ना, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। यानी जो ऊपर कंपोनेंट, जो रिटर्न कंपोनेंट दिया ना, मतलब ये कंपोनेंट एक तरह से HTML, बहुत सारे HTML टैग्स का कलेक्शन है। मतलब आप इसको देखोगे, अब मैं कंपोनेंट के अंदर जाऊंगा कि उसके अंदर क्या है, तो उसमें आपको दिखेगा कि उसमें मल्टीपल HTML वैल्यूज और दी हुई है, जो कि एक पेज रेंडर में, यानी पेज वेब पेज में शो करने के लिए यूज आ रही है, ठीक है। होप इट इज क्लियर। तो ये अभी इसको कुछ छेड़ना नहीं अपन को, इसको लाइक एज इट इज रखना है। नाउ लेट, अब देखो एक चीज आपने नोटिस की क्या, मैं जैसे ही इसको सेव कर रहा हूँ कुछ लेके, लाइक आई पुट अ स्पेस सेव, नीचे इट इज ऑटोमेटिकली कंपाइलिंग द होल ऐप, यानी जहां पर भी जो चेंजेस हुए हैं उन सबको कैलकुलेट करके इट री-रेंडर्स द होल थिंग। यानी Next.js इज टू फास्ट कि आप कुछ भी चेंज करते हो एज वो तब के तब आपको विदाउट पेज रीलोड आपको वेबसाइट में दिख जाएगा। लेट्स सी कैसे, लाइव एग्जांपल। हमारा यहाँ पर index.js फाइल है जिसमें अपन को जो सारी चीजें दिख रही थी, सी index.json है, उसमें आपको दिखेगा वेलकम टू Next.js, गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग। अगर मैं इसको वापस करूं इधर वेब पेज पे, सी वेलकम टू Next.js, गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग, तो ये कहां था, ये यहां था, सी इट्स सिंपली एन HTML, बट HTML को फास्ट रेंडरिंग और स्टैटिक टाइप जनरेशन के द्वारा ये Next.js को पावर अप करता है, इस वजह से इट इज फेमस, ठीक है। इट इज यूजिंग HTML बट इज एडिंग सम टू एडिशनल फंक्शनैलिटीज टू इट, ठीक है। सो अभी अपन क्या करते हैं, इनमें से कुछ चेंज करते हैं कि इसका रीलोड कैसा हो रहा है। लेट्स सी कितना, जैसे Next.js है वेलकम टू, let me change into SJCM, right, let me save it, compile हो रहा है, compile client and server successfully in इतना टाइम है ना। You can see here without reloading the page it changed the things which have I changed in the code. See, SJCM is here, so this is what makes Next.js cool, है ना, फास्ट रेंडरिंग। मतलब ये चेंज किया या आपको वेबसाइट में दिख जाएगा। बट व्हाट हैपेंस अगर किसी ने HTML में काम किया हो, VS कोड में यू हैव टू रन लाइव सर्वर, फिर उसके बाद वो पेज को वापस रीलोड करना पड़ता था वो चेंजेस देखने के लिए, तो वो चीज इसमें अभी जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। तो दिस इज द कूल फंक्शनैलिटी ऑफ आवर Next.js। नाउ वन मोर थिंग, ओके, वन मोर थिंग इज हियर कि यहाँ देख रहे हो आप, ये जो पेजेस वाला जो सेक्शन है ये वाला, ये जो है पर्टिकुलर पोर्शन, ये पोर्शन आपके इन जो ऊपर राउट दिख रही है आपको, ये एक्चुअली स्लैश राउट है। अगर मैं इसको थोड़ा डिफाइन बताऊं, दिस इज द स्लैश राउट, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन ना, मतलब ये आपका वेब एड्रेस, उसके बाद ये पर्टिकुलर राउट क्या होता है, वेब, मतलब आप जैसे ऊपर जैसे ये आपका जो वेब एड्रेस दिखता है उसका अगला वाला पोर्शन, जस्ट जो URL है उसके बाद जो स्लैश के बाद जो चीज आती है दैट इज राउट। तो ये जो स्लैश है वो पर्टिकुलर थिंग ही है, मतलब होम पेज इज द स्लैश। अगर आपको कुछ और राउट बनाना है, यानी कुछ और नया पेज बनाना है, सोचो
if you are making a new page, what you will do is simply, मतलब Next.js ना आप पेज बनाने तक आ गए, like you have installed the app, you have seen how fast it is rendering your changes, and now you are creating a new page or a new route to it. So क्या करते हैं हम, pages वाला जो folder है, pages वाला folder पे अपन क्या करेंगे, new file. Okay guys, we are putting new file. So in this, what we will do is we will write, let me see what we will write, on hello, simply hello, एक hello route बना देते हैं, hello.js. ठीक है, अब इस hello.js को पेज बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत है. जैसे फर्स्ट थिंग इज कि वी हैव टू डिक्लेयर अ फंक्शन, लाइक यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन होम, यह जो पर्टिकुलर लाइन है एज इट इज, हमें वहां भी एक फंक्शन चाहिए. तो व्हाट विल वी डू इज, बाकी चीजों पे देखो, अब इसमें बहुत सारी चीजें दिखी होगी कि यार ये इंपोर्ट हेड क्या है, इमेज क्या है, स्टाइल्स क्या है, नेक्स्ट इमेज क्या, अभी तक ये चीजें छोड़ो, जो चीजें अपन को अभी चाहिए उन पे फोकस करो. वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप थ्रू इट. ठीक है, ओके गाइस. तो what we'll do is we will write, now what is export, एक line export. Now here export means कि जब ये आपने index.file बनाई थी आपने, ये जो फंक्शन था ना, ये फंक्शन होम, ये इधर से लेके पूरा नीचे तक, इस चीज को Next.js को दिया आपने कि भाई Next.js क्या करता है, Next.js का जो सर्वर आपने जो npm run dev किया है नीचे, उससे क्या होता है कि वो इस वाले पेजेस वाले फोल्डर में आता है, फिर वो देखता है कि कौन से फंक्शंस उन्होंने एक्सपोर्ट किए, उन फंक्शन को एज ए पेज रेंडर कर दिया. तो अपन को क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है अपन का पेज का, कि उसके अंदर पेज के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव टू एक्सपोज टू Next.js. नाउ हाउ विल वी एक्सपोर्ट, सॉरी एक्सपोज करेंगे बाय यूजिंग द एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिंटैक्स, और व्हाट वी विल राइट कमांड. ओके, अब एक्सपोर्ट तो लिख लिया, अब एक्सपोर्ट करेंगे. नाउ नाइस, नाउ व्हाट इज डिफॉल्ट, गुड थिंग है ना. अब इस पे अपन आते हैं, what is default. See, we have, when we are working with Node.js, any library like JavaScript वाली things, तो we have to export import, यानी कोई चीज एक्सपोर्ट करती है तो कहीं से इंपोर्ट, मतलब कहीं से इंपोर्ट होगी तो कहीं से एक्सपोर्ट तो ही होगी, है ना, राइट. तो we have two methods of export import. One is named export and second is default import export, है ना. Named export import, default import export. Again, if I will show here, let me see, default and named export import, exports and imports. Let's see. Hey, one more thing, general, like general suggestion to you all who are watching the meet now, कि हर बार ये होता है ना कि we see people कि यार इसने एक साल में इतना कर दिया, इसने ये कर दिया, how he is so smart. See, basically मेहनत तो होती है, but there is something called smart work. Whenever you are learning, I will say कि मैं किसी को अगर मैं judge करूंगा, like if I am saying कि how good he is, I will particularly see his googling skills. लाइक वो कितने अच्छे से गूगल कर सकता है, लाइक उसको ये पर्टिकुलर चीज, यानी कुछ एरर आई है तो उस एरर की पर्टिकुलर कौन सी लाइन वो पेस्ट करेगा, उसको फटाक से एरर मिलेगा, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि वो एरर कहाँ से सॉल्यूशन उसका दिखेगा. स्टैक ओवरफ्लो इज फेमस, आई नो, बट समथिंग लाइक कोड ग्रेपर और लाइक पर्टिकुलर गिटहब का डिस्कशन वाला पार्ट, तो कहाँ से वो लाएगा, तो उसका आइडिया उसको कितना है, आई विल जज हिम. और मतलब एक डेवलपर वो होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, यू कांट मेमोराइज और like remember everything what you learn, but you have the capability to search for that, कि आपने वो चीज ली है ना, तो फिर आपने कुछ चीज आपको अंदर है तो वो चीज वापस निकाल के देनी आनी चाहिए, वो सर्च करके वापस लाना चाहिए. सेम गोज फॉर like it's an example of shopkeeper, like किराने की दुकान है, he will having n number of things in it, but अगर आप बोलोगे कि भाई ये चीज लाके दे, तो he will fastly say हाँ इधर जाके देखूंगा तो पक्का मिल जाएगी, उसको पता नहीं कि पर्टिकुलर वही है, पर वो देखेगा हाँ मुझे पता है कि इस वाले सेक्शन में कहीं ना कहीं तो होगी, तो उसको ढूंढने का वो मेथोडोलॉजी उसको पता है. तो यू शुड हैव द कैपेबिलिटी फॉर गूगलिंग. ठीक है, सो that was a general advice for all you. So now let me focus in what is saying, like
नेम्ड एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना। मैं कोड लिखने से अच्छा इस आपको डायरेक्ट देखो एमडीएन ब्लॉक्स के अंदर बताता हूँ व्हाट इज डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, सिंपली ओके इट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट export is here, where is import? I guess it is for import. Okay, there is no anything import here, so इधर देखने से मतलब नहीं है। ओके बेसिकली इसकी डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट होता है कि डिफॉल्ट मतलब इनिशियल वैल्यू, मतलब कि वो इनिशियल वैल्यू हमने ये दी है कि भाई मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम किया है ना, ठीक है। तो फिर अगर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम किया है तो आई विल इंपोर्ट इट एज होम कमिंग, कुछ भी लाइक आपने एक्सपोर्ट किसी एक नाम से किया है तो आई कैन इंपोर्ट इट एंड कुछ भी नाम से। एंड for the named export import, if I am specifying export मतलब home, then you have to import it as home only, यानी आप कुछ और चीज से उसको import नहीं कर सकते। This is the basic difference here. So here we can see, देखो my component में इसने import किया है curly braces के साथ। So if you see curly braces in an import statement, then फटाक से दिमाग में आना चाहिए कि ये चीज क्या है, named import, यानी वहां से इसको एज ए नेम्ड एक्सपोर्ट किया गया, इसलिए हमने इसको एज ए नेम्ड इंपोर्ट किया है। यानी आप माई कंपोनेंट के अलावा कोई और नाम नहीं लिख सकते हो, ठीक है। एंड लाइक इसने मल्टीपल किया है, देखो अब इसने एक्सपोर्ट कैसे किया है, एक्सपोर्ट सिंपल। नाउ हियर योर थिंग इज कॉन्स्ट। नाउ व्हाट कॉन्स्ट इज, द कॉन्स्ट इज लाइक मतलब अपन इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट होल एवरीथिंग, यानी वो पूरे पेज या पूरे फाइल सिस्टम में वो सेम रहेगी। तो माय कंपोनेंट जो नाम है इट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द फाइल्स। तो उस वजह से उसको इंपोर्ट आपने ऊपर किया तो क्या किया, एज ए नेम्ड इंपोर्ट किया, यानी इधर से नेम्ड एक्सपोर्ट हुआ। क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट हर जगह, उस चीज को नाम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये इंपोर्ट। अब नाउ वी आर गोइंग इनटू डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या, देखो अब भाई साहब मैंने एक्सपोर्ट किया डिफॉल्ट माय कंपोनेंट, मैंने इस नाम से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया। बट यहाँ ऊपर देखो मैंने इंपोर्ट किया माय डिफॉल्ट कंपोनेंट, यानी मैंने जो नाम से एक्सपोर्ट किया था उस नाम से नहीं, बल्कि मैं किसी और नाम से भी इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। दैट्स द बेसिक केस। सो आई होप एवरीवन understood the difference between named and default export import. If yes, put a thumbs up. If no, then ask the query. You are in a meet, you can ask freely. If yes, then please put a thumbs up. Okay, people are quite smart, huh? Nice. ठीक है। So what we'll be doing is कि जो कि अब इससे ये पता चल गया आप हम इधर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो Next.js के अंदर की स्क्रिप्ट फाइल्स हैं वो अपनी क्या डिफॉल्ट एक्सपोर्ट वाली चीजों को ही इंपोर्ट करता है, वो नेम्ड वाली नहीं करता। तो फॉर दैट वी आर राइटिंग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, देन we will be declaring a function like here default function, we will be writing is here function. Now what will be writing, hello simple, ये फंक्शन बन गया। नाउ इट द फंक्शन विल रिटर्न अ थिंग, यानी अगर आप इस वाले पेज पे जाएं व्हाट इट इज रिटर्निंग, लाइक आपका वेब पेज है तो इन सिंपल टर्म्स थिंक अबाउट इट कि व्हाट विल योर फंक्शन ऑफ अ पेज विल रिटर्न, यानी वेब पेज क्या करेगा कि उस Next.js के पास जाएगा भाई कि भाई तूने इतने सारे फंक्शंस एक्सपोज किए मेरे को दे दे। अब वो फंक्शन एक्सपोज किया, उसने उसको रन किया, अब रन में रिटर्न में क्या देगा, सिंपल द पेज डेसिमल पेज देयर, है ना। तो वो वाली चीज वो देगी। अब लेट्स सी हम भी यहाँ पर क्या करते हैं, HTML रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न will be returning like make a div here. Okay, I guess made the wrong braces here. We solve this. I guess I solved it. Yeah. तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे h1 tag. Now here I will write hello and I will save it. Now अगर मैंने चीज सेव कर ली है,
and I guess it is now compiled here. Let's see it comes there on what. अब ये देखो hello वाले route पे if it is coming or not. See, it is that easy to create a route in Next.js. It is the benefit of Next.js. See, सिर्फ है मैंने वो एक मैंने फाइल बनाई, क्या बनाई मैंने बनाई एक hello, ठीक है, hello.js, उसमें मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन लिखा, फिर फंक्शन का नाम लिखा जिस भी फंक्शन के नाम से बनाना है, देन उसके अंदर हमने रिटर्न में क्या HTML टैग HTML प्रोवाइड किया भाई, क्योंकि वेब पेज है तो HTML से रिटर्न लेगा, तो HTML रिटर्न में मैंने हेलो दी थी HTML टैग के अंदर. So let's see कहाँ गया, हाँ, so you have hello here. You have successfully created a page here. Okay, so what we have learned, how to create a next step, what does the package.json do, कि उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, dependencies क्या होती हैं, script file क्या होती हैं, what is npm run dev, उस चीज का significance क्या है, what is npm is, ठीक है. Then we have gone into the project structure. उसमें हमने pages के बारे में पहले देखा कि what does the pages do, और pages में सिर्फ just making a file will create a route here. अब देखो इसमें एक और चीज कि जो यहाँ पर hello है उसी नेम से ही फाइल बननी चाहिए, इन जो फाइल का नेम है उसी नेम से राउट बनेगा, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ वी हैव क्रिएटेड द नेक्स्ट स्टेप हियर. नाउ अब हम करते हैं the next part in the pages, which is an API. Now it is an interesting part which keeps which मतलब जो React से better बनाती है Next.js को, वो ये particular portion है. It is very important to understand what does it the folder do. ठीक है, it is very important. Please carefully listen this कि pages के अंदर we have an API folder, and इस API folder में you can see we have a hello.js जो पहले से by default बनी होती है. So it is saying export default function, there is a handler, there is a function here. ये भी एक function है जैसे normal pages के अंदर function था, but here is a term here. वहाँ पर bracket के अंदर कुछ नहीं था, argument के अंदर कुछ नहीं था, ठीक है, props के अंदर कुछ नहीं था, but here you have req and res. Now what does the req and res means? Req means request. I repeat, req means request and res means response. So here you can see we have request and response as an argument in this function. So जब ये function expose होगा Next.js से web page पे, the web page will use this request and response, यानी it will request something and give response to it. समझ रहे हो, यानी it works as an API. API means जहां पर आप बैक एंड से फ्रंट एंड से बैक एंड को कम्युनिकेट कर पा रहे हो. वो फोल्डर कौन सा है आपका, API. दिस इज एन इंपॉर्टेंट फोल्डर व्हिच मेक्स डिफरेंशिएटिव फैक्टर फॉर Next.js for like other than the frameworks or libraries which are existing now. ठीक है, तो in which we have now what is REST response, rest.status. now we are, अब ये वाले पोर्शन पे आप आते हैं. लेट्स सी कि ये राउट पे कैसे दिखता है. सी इसको हम अभी देखेंगे, राउट पे देखते हैं. आपने सिर्फ हेलो लिखा था, अब मैं जाता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जितने भी राउट्स बनते हैं वो उनके पेजेस के हिसाब से बनते हैं. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर कि पेजेस के अंदर एक फोल्डर है. हमने तो क्या बोला था कि भाई पेजेस के अंदर कोई भी फाइल बना दो, वो तो भाई राउट बन जाएगा. नाउ व्हाट विल हैपन इफ API is here, it will treat as a route. I repeat, it will show as a route in the browsers. See pages के अंदर क्या है, hello. pages के अंदर API, then उसके बाद hello. We will write API, मतलब मेरी URL, then we will write hello. ये hello और उस hello में बहुत फर्क है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट hello लिखा था, इसमें API के अंदर hello है. Now I will enter in. Let's see what comes out. अब ये इससे क्या, what it is a JSON. Again it is a JSON response. See, it's a JSON response which has a key name. अगर नहीं दिख रहा हो तो I will zoom. दिख रहा है ना सबको name and मतलब उसकी वैल्यू. तो yes लिख लो जस्ट, अगर दिख रहा हो तो.
नेम जॉन अगर दिख रहा हो तो यू कैन से यस. ओके कूल. अगर जूम इन करना हो कोड में तो भी बता देना, आई विल जूम इन टू दैट. ठीक है. So there is a key name and then there is a value called John Doe. Okay. So अब ये जो चीज है वो कैसे है, अब इस चीज को अपन इन डिटेल थोड़ा समझते हैं, थोड़ा मतलब जस्ट क्विक. सी Next.js ने स्क्रिप्ट चलाई, वो आया इस फाइल में API के अंदर hello.js में, then it come into that function which is exported with what it as a default manner and handler पे आया, then it used the request response. Now what is it, requested a page and in the response what we are sending is request में उसने अपना internally काम ले लिया, then what it is response, इस response में we are sending status. Now what is status, कि जब भी आप है ना कुछ भी पेज कर रहे हो, जो कभी भी देखा है कि कुछ पेजेस 404 नॉट अलाउड, 404 एरर दे देती है. Now what that 404 means, it is an status code. Web pages when it loads it has particular status codes, यानी अगर कुछ रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होती है, उसका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ जाता है, then it gives an status 200 okay. सेम एज अगर वो नहीं देता है तो देन इट विल गिव एन 404 एरर, यानी 404 एक कोड है टू मेक टू गिव एन एरर. ये पहले से डिफाइंड है कि 2020 से लेके 201 203 204 इन पर्टिकुलर थिंग्स में नॉर्मल अपन के जो सक्सेसफुल वाले वो आ जाते हैं, एंड देन 404 400 500 इनके जो बियॉन्ड है वो एरर्स के लिए होते हैं. ठीक है, एक्सक्यूज मी. सो दिस वर द थिंग्स. तो अब इसमें क्या किया है, रेस्पॉन्स में हमने स्टेटस 200 यानी ओके यानी सक्सेसफुल रिस्पॉन्स भेजा है एज ए फॉर्मेट ऑफ जेसन. सी देयर इज अ डॉट. नाउ व्हाट इज डॉट, द डॉट इज यूज्ड टू जेसनिफाई, यानी उस चीज को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव यूज्ड डॉट जेसन फंक्शन एंड देन वी पास्ड इन कर्ली ब्रेसेस नेम देन जॉन डॉय. ओके, I hope it is clear to you all. और इस वजह से वो जो जेसन वाली जो ऑब्जेक्ट है वो आपको यहां देखने को मिल रही है, नेम जॉन डे. ठीक है. नाउ अब देखो, अब ये जो चीज है, अब मानो ना मानो, इट्स अ सर्वर, इट्स अ सर्वरलेस सर्वर फॉर सम लाइक टू बी पर्टिकुलर, यानी एक फ्रंट एंड ऐप के पास भी खुद का सर्वर है पर जो कि सर्वरलेस है. Now what it means is कि ये जो चीजें हर बार रन नहीं हो रही है. When I am going to this page URL, it is putting a request to the server, मतलब जो पीछे API है उसमें एक request डाल रहा है, then it is getting a response. तो उस particular time के लिए वो रन हुआ, पर वो वर्क क्या किया, एज ए सर्वर किया. उसमें सर्वर की सारी चीजें चल जाएंगी, फाइल सिस्टम चल जाएगा, बाकी जो चीजें सर्वर पे चल सकती है वो सारी चीजें इस वाले फंक्शन में चल जाएगी. जो कि अगर आप कभी ट्राई करो ना, जैसे FS होता है, FS होता है फाइल सिस्टम, बाद में आप जब भी इस चीज को, इस सेशन के बाद कभी भी खुद बैठो, FS को कभी क्रिएट रिएक्ट ऐप, मतलब सॉरी फ्रंट एंड या क्रिएट नेक्स्ट ऐप में जो जितने भी ये इस वाले ना हेलो और index.js इसमें यूज करके देखना नहीं होगा, क्योंकि इट्स अ सर्वर फंक्शन. तो उन फंक्शन को यूज करने के लिए वी हैव अ सर्वरलेस फंक्शंस बिल्ट हियर व्हिच एक्ट्स एज अ सर्वर इन Next.js ऐप. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो अपन यहाँ पर सारी चीजें यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पर we will be using we will be building a particular function to fetch that NASA API. अब वो NASA API का चीज आ गई. अब वो NASA API we will be fetching here and we will be using that. ठीक है, so let's see how we can use that. Okay, ठीक है. Now let's see what I have to do is कि अभी पहले जाते हैं कि wait a sec, let me open that particular NASA API. Where is that NASA API? Okay, I guess it is here.
सो नासा एपीआई वापस अपन जाते हैं. NASA space. We will be using that NASA API to get that data. जो copyright जो JSON start में आई थी ना, जो image वगैरह की फाइल सारी वो अब हम अपने में import करना है. तो how we can do that? So we will be going into that particular HTML picture of the day, and नीचे we will be having that particular URL. इसमें अपन को क्या मानना है? Get request. ठीक है? Mention that thing. Get request here. अब get request, post request, मतलब there are types of requesters. Get requesters, post request, put, delete, and so on so on. अभी के लिए अब we will using get request. Get request में कुछ नहीं है. आप एक पर्टिकुलर URL पे get request मारोगे, वो आपको कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा. कभी कभार ऐसा होता है कि जिस आपने खुद का एक API बना लिया, सोचो ये तो नासा की API है, खुद की API बनाई, उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो we will be using post request. यानी पोस्ट में आप इधर से भी डेटा भेज रहे हो और वो डेटा जाके उधर जाके आपके सर्वर में चेंजेस ला रहा है, देन वी विल बी यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट. ठीक है. सो अब इस हेलो को डिलीट कर लेते हैं, फालतू की चीज हेलो तो चलो रहने दो. अब इस एपीआई में वी विल बी बिल्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलर फाइल नेम GraphQL. अब वो चीज आएगी जो वी विल बी वेटिंग कि भाई GraphQL क्या था. आपने Next.js में बता दिया कि इतनी सारी चीजें होती हैं कि हाँ उनकी फास्ट रेंडरिंग होती है, ऐसा होता है, इतनी सारी चीजें हैं, तो अभी GraphQL पढ़ने की क्या जरूरत है भाई, क्या चिंता है. तो मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा कि पहले जब अपन एपीआईज बनाते थे, फ्रंट एंड जब सर्वर पे रिक्वेस्ट मारते था, रिस्पॉन्सेज आते थे, सोचो आपका एक एपीआई है जो आपको क्या देता है, उसका डेटा क्या क्या देगा. सोचो आपका जो कॉलेज है उसके सारे डिपार्टमेंट, आपके उस पर्टिकुलर डेटाबेस में डिपार्टमेंट, उसके फैकल्टी, टीचर सारे, एंड देन उसके स्टूडेंट्स, एंड देन उसके स्टाफ मेंबर्स, और सो ऑन सारी डिटेल्स हैं. लेट्स सी डेटाबेस में आपके एपीआई में सब सारी चीजें पड़ी हुई सर्वर में. नाउ इन द फ्रंट एंड यू ओनली वांट स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. ठीक है. तो देयर आर टू ऑप्शंस. Either in your database there will be a function or there will be a separate query you have to run कि भाई कि हम को सिर्फ इस टेबल में से सिर्फ स्टूडेंट्स उठा के दो. ठीक है. बट नाउ देन व्हाट इफ कि मैं बोल रहा हूं कि मेरे को एक अलग जगह पे टीचर्स चाहिए और एक जगह पे स्टूडेंट्स चाहिए. मतलब एक जगह पे तो मेरे को एक क्वेरी रन करनी पड़ती है स्टूडेंट्स की, एक बार मुझे रन करनी होती है टीचर्स की, और अगला कभी आता है मुझे बोलता है भाई मेरे तो स्टाफ का चाहिए. अब मेरे को 3 क्वेरीज रन करनी पड़ रही है सर्वर पे. एंड यू नो दैट कि टू रन अ क्वेरी इन डेटाबेस इट इज अ ह्यूज टास्क, क्योंकि एक बार आप क्वेरी रन करते हो वो उसमें सारे मैच केसेस करता है, देन फिर वो चीजें रिटर्न करता है. ओके. तो अब उसके लिए अगर 3 चीजें क्वेरी रन करनी पड़ती है और आपको सर्वर पे अलग अलग एपीआई राउट्स बनाने पड़ते हैं. मैंने जैसे ये बनाई ना एपीआई, अब एपीआई मुझे चाहिए, चलो मैंने बोल दिया कि भाई एक चाहिए जिसमें मैं /API करूं जिसमें मेरे स्टूडेंट्स आ जाए. मैंने स्टूडेंट JS बना दी. हाँ भाई इसमें तो स्टूडेंट आ गए, वेरी नाइस. अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे तो टीचर्स भी चाहिए. तो मैंने एक राउट बना दिया एपीआई राउट से. ठीक है. जिसमें सिर्फ टीचर्स आएंगे, टीचर्स बना दी. अब मैंने एज इट इज स्टाफ के लिए बना दी. तो कितनी सारी राउट्स होगी, यानी इतनी सारी एपीआई चीजें एक्सपोज होगी. समझ रहे हो, मतलब आपको अलग अलग बार रिक्वेस्ट मारनी पड़ रही है सबके लिए, अलग अलग बार क्वेरीज बैकएंड से करनी पड़ रही है. तो इसके लिए डेवलपर्स ने सोचा क्यों ना इसका एक बेटर अप्रोच हो. यानी एक बार में वो जो टेबल है उसमें से टीचर, स्टूडेंट, स्टाफ सारे फैच हो गए, फिर वो बैकएंड में कहीं एक जगह आ गया, फिर उसके बाद जिसको जो चाहिए वो उस टाइम में दे दो. तो उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए दे मेड GraphQL. ठीक है. Now what GraphQL is? Graph Query Language. Yani it is it's a technology which enables us to particularly
सेलेक्ट थिंग्स कि यही चीजें फ्रंट एंड मैनेज है। बैक एंड में उसने डेटाबेस को बोल के कि भाई मुझे स्टाफ भी देते, स्टूडेंट भी देते, सब देते, एक बार में एक ही कॉल की, यानी सोचो 3 कॉल मार रहा है। स्टूडेंट्स के टेबल्स को करने के लिए 3 सेकंड लग रहे हैं, टीचर्स के लिए 3 सेकंड्स लग रहे हैं, स्टाफ के लिए भी 3 सेकंड्स ले रहे हैं। तो यानी वो जब स्टार्टिंग से लेके सारी क्वेरीज रन करेगा तो टोटल विल बी 9 सेकंड्स। ठीक है। इन द सेम केस इफ इट इज like querying whole data from database at one go, max to max it will like it will require 4 seconds, like 3 seconds तो नहीं होंगे, 4 seconds मान लो। तो एक साइड पे आप देख लो 6 सेकंड्स चाहिए और एक जगह पे 4 सेकंड्स में सारे डेटा आ रहे हैं, और क्यों ना उस पूरे डेटा में से कुछ कुछ चीजें हम फ्रंट एंड में भेजें। तो वो जो पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए वी हैव GraphQL with us. So what GraphQL does is okay, let me change the view here. Let me okay. Why isn't running here? Wait a second, guys. Just to wait. There are some points which you have to be like think about it कि क्यों GraphQL REST API तो बनी हुई है, RESTful API। the thing मैंने जो बोला ना कि एक बार आप कॉल करो, उस चीज को बोलते हैं REST API, RESTful API उसका नाम है, जस्ट जो पहले अपन यूज करते थे कि भाई हाँ एक बार एक राउट बनाओ, उसमें हम गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट डालेंगे, देन वी विल बी लुकिंग इनटू दैट, ऐसा वो वाली चीज। let me close this. Okay, it is somehow glitching, yes. Okay, cool. Okay, now what is GraphQL? See, GraphQL is a query language for APIs and a runtime for fulfilling those queries with your existing data. Oh, blah blah blah. क्या है तो सब कुछ मैंने बोल दिया। सी एक एक करके चलते हैं, ठीक है, बेयर विद मी, कोई दिक्कत नहीं है। दिस आर वेरी सिंपल टर्म्स, बट जब आप पहली बार देख रहे हो इसलिए लग रहा है। अब जो कुछ बच्चे जिनको जावास्क्रिप्ट नहीं आ रही थी उनको लग रहा होगा भाई ये क्या है, कैसे सीखेंगे इतना कुछ, बट आई एम सेइंग इट इज डैम टू इजी। इसलिए तो ये चीज बनाई गई है। व्हाई पीपल आर बिल्डिंग दिस न्यू थिंग्स to make our life easier. Like अगर आप React पे जो चीजें कर रहे हो, जो Next.js अभी कर रही है, you will take more time और उस चीज को सॉल्व करके Next.js बनाइए। तो GraphQL is for that. See, GraphQL is a query language. Now what is a query? कि भाई अब आप किसी से कुछ क्वेरी करते हो, मतलब व्हाट इज कि यू आस्क फॉर समथिंग, हाँ लो मेरे को ये चीज चाहिए, ये चीज कहाँ मिलेगी, ये चीज कहाँ है। तो दिस इज ए क्वेरी लैंग्वेज विच इज यूज फॉर एपीआई, यानी जो एपीआई हम बनाते हैं उसके लिए GraphQL यूज किया जाता है, एंड रन टाइम फॉर फुलफिलिंग दोस क्वेरीज विद योर एक्जिस्टिंग डेटा। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम से आपको शो करता हूँ कि व्हाट डज GraphQL सेटअप कैसे होता है। थोड़ा मैं डीप डाइव करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको ही मजा आएगा कि GraphQL इतना क्यों फेमस हो रहा है, कुछ तो बात होगी उसमें। सो लेट मी शेयर अ व्हाइट बोर्ड हियर in which I will be explaining the whole thing. Just a second. Just loading. It's taking little time here. I don't know why. Okay. Load here. So guys, see, देखो, in simple terms, this is our
क्लाइंट साइड, ठीक है। तो मैं नाम दे सकता हूँ, देयर इज अ टेक्स्ट वर्जन आई गेस, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्लाइंट, ठीक। एंड देन we have our server here, like there are two portions of a web app, client and a server, ठीक है। so I am putting it, just doing it quickly so that you can understand, like हर चीज मैंने पहले बोला कि एक वेब ऐप में इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है, पिक्टोरियल थिंग्स, तो आपको पिक्टोरियल थिंग्स में बताऊंगा, इट विल बी इजी फॉर यू। सो नाउ हियर जब क्लाइंट, मतलब जो क्लाइंट है वो इधर से बोलेगा भाई मेरे को कुछ चाहिए यहाँ से, और it's saying कि भाई ये it's a request, ठीक है, it's a request, ठीक है, and it will give a response. This is the basic architecture of a web app, ठीक है, ओके। आप एक रिक्वेस्ट, क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट आती है, सर्वर फुलफिल्स द रिक्वेस्ट एंड देन इट गिव्स अ रिस्पांस, फाइन। नाउ व्हाट हैपेंस कि मेरे को मल्टीपल अलग अलग रिक्वेस्ट अलग अलग टाइम पे चाहिए, अलग अलग लोग चाहिए, भाई मेरे को एक बार में स्टूडेंट्स चाहिए, एक बार में मेरे को टीचर्स चाहिए, ऐसा। अब यहाँ पर वी हैव आवर डेटाबेस हियर, ये अपना डेटाबेस है इधर पड़ा मस्त, ठीक है, ये अपना डेटाबेस जिसमें आपके कॉलेज की क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें, स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ है, टीचर्स हैं, ठीक है, थ्री थिंग्स आर हियर, इट गिव्स अ रिस्पांस एंड देन यहाँ से वो यहाँ से फिर क्वायरी करेगा डेटाबेस से कि भाई मेरे को वो चीज दे, तो इट इज टेकिंग टोटल टाइम लाइक 3 सेकंड्स, और आने में भी पूरा टोटल 3 सेकंड्स, ठीक है। नाउ व्हाट हैपनिंग इज हियर कि ये जो क्वेश्चन है इसमें मल्टीपल, जैसे एक बार में स्टूडेंट्स मान लिए, एक बार टीचर्स मान लिए, तो इट इज टेकिंग नाउ 6 सेकंड्स, ठीक है। अब इफ आई कुड से कि जितना भी डेटा है सारा डेटा एक बार में ला लो भाई, है ना, सारा डेटा एक बार में ला लिया, क्योंकि एक रिक्वेस्ट है तो देखो डेटा ज्यादा बड़ा होगा तो लाने में इतना दिक्कत नहीं है, बट मल्टीपल रिक्वेस्ट होगी ना तब टाइम लगता है हमेशा, ये बी क्लियर ऑन दैट माइंड। हाँ, समटाइम्स इट विल चेंज, बट मोस्ट प्रोबेबली जितना कम रिक्वेस्टेस होंगी उतना ज्यादा अपना टाइम होगा, मतलब उतना कम अपना टाइम होगा, ठीक है। तो एक बार में सारा डेटा आ गया अपना पास, ये पूरा डेटा आ गया, ठीक है, ये पूरा डेटा आ गया अपने पास। अब what I am doing is I am putting a GraphQL layer here, ये GraphQL क्या रहता है, यहाँ ये जो पोर्शन है ना, ये इतना था, यानी जो कनेक्टिंग पोर्शन है यार, ये here we have GraphQL, यहां पर अपना GraphQL रिसाइड करता है, यानी फ्रॉम क्लाइंट पर्सपेक्टिव and from the server perspective it exists on both sides and it keeps a layer between them, जो कि अपन को डेटा पर्टिकुलर फेच करने में काम आता है। एंड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग वी हैव GraphQL की ओरिजिनल वेबसाइट आप जाओगे अगर, GraphQL if you visit that their original website there is a amazing मतलब amazing explanation there, उन्होंने सिर्फ एक GIF से सारा चीज बता दिया है। I will share that thing, ठीक। और मैंने ये सारी चीज पीपीटी में इसलिए नहीं डाली है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं ये बता सकूं कि मैंने ये कहां से लिया है। आई डोंट वांट कि मैंने बता दिया और आपने सीख लिया, मैं ये चाहता हूं कि आप आके कैसे सीखें, लाइक आपको और चीजें देखनी है वो कैसे आप देखोगे, तो इस वजह से मैं आई एम कमिंग इनटू द वेबसाइट्स ओनली। सी हियर, सी दिस इज द सर्वर, दिस इज द क्लाइंट, उसने रिक्वेस्ट दी यहाँ पर ये चीजें चाहिए and the server will give the responses. See, hello name, उसने बोला hello name friends name, और in response उसने hello name friends सारे भेजे, मतलब जो चाहिए वही दे दिया। Get many resources in a single request, okay, and ask for what exactly you will get, है ना, मतलब ask what you need, get exactly that, यानी मतलब आप मुझे नेम चाहिए तो सिर्फ नेम आएगा, और जैसे मैंने नेम से देखो हाइट लिख तो हाइट आ गई, यानी एक बार में उसने डेटाबेस से सब लाके बैकएंड पर रख दी है, पर वो सारी चीज कहाँ स्टोर्ड है, GraphQL के लेयर पे स्टोर्ड है वो चीज सारी, तो वहां से वो जो चीजें आप मांगेंगे फ्रंट एंड से वो एग्जैक्टली दे देगा। दैट्स इट, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ GraphQL एंड इट इज वेरी फेमस इन नाउअडेज, लाइक जो मोस्ट MNCs हैं, मोस्ट स्टार्टअप्स हैं, वो यही यूज कर रही है।
ठीक है, तो दिस वाज इट गाइस. आई होप यू अंडरस्टैंड वेयर GraphQL रिसाइड. क्योंकि मैं जब GraphQL सीखा था मुझे पता नहीं था कि GraphQL क्लाइंट साइड है कि सर्वर साइड है, कि हर मतलब ये जगह कौन सी है, ये क्या कर रहा है. देन आई गॉट टू नो कि it's a layer, it's a layer between client and the server which acts as a medium of transferring that particular data, and it controls the flow of data. कि सिर्फ इतना डेटा चाहिए कि इतना ही मांग रहा है. क्यों सर भाई, एक मुझे सिर्फ स्टाफ का चाहिए तो मैं स्टूडेंट्स का क्यों लूं? पॉइंट. तो उस चीज के लिए मैं मल्टीपल रिक्वेस्ट मारता था जिसमें मुझे बहुत टाइम लगता था, तो उस वजह से हमने ये चीज सॉल्व किया. दैट्स द पॉइंट ऑफ GraphQL. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, आई डोंट वांट, बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी. सो आई डोंट वांट दैट. सो या, so advantages of GraphQL which you seen in the website itself. Ask for what you need, get exactly that. यानी GraphQL calls are handled in a single round trip. यानी एक बार में जाता है, सारे डेटा लेता है. But clients get, यानी जो मैं चाहता हूँ client get what they request with no overfetching. यानी मुझे सिर्फ 3 में से 2 चीजें चाहिए तो मैं सिर्फ 2 चीजें पा सकता हूँ, despite being three things coming from them. I hope that is clear. And one more thing, describe what's possible with the type system. And ये type system अभी भी देखने वाले हैं कि वो क्या चीज है. कि we will strongly define data types, reduce miscommunication between the clients and server. हर बार ऐसा होता है, देखो ये बहुत ऐसा wordings बहुत हाई लग रही हैं, no issues, मैं समझाता हूँ. देखो बहुत simple ways में, see कुछ नहीं है. मेरे को जैसे मैंने बोला ना, स्टाफ चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए और टीचर्स चाहिए. मेरे को टीचर्स में ये चाहिए कि टीचर्स का नेम स्ट्रिंग हो, टीचर्स का एज नंबर हो, टीचर्स की सैलरी नंबर हो. तो ये जो सारी चीजें, इट इज अ टाइप, ये उनका टाइप है. उसकी डेफिनेशन बनती है विच वी कैन इम्प्लीमेंट इट. यानी मैं चाहता हूं कि भाई जो नेम आएगा वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग में आएगा, कोई नंबर नहीं है. ऐसा नहीं कि भाई 1 2 3 लखन सिंह, व्हाट इज दिस, आई डोंट वांट दिस, आई वांट दिस एज ए स्ट्रिंग. मतलब एक स्ट्रिंग में ही चाहिए सारी चीजें, मैं उसमें नंबर इंक्लूड नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, है ना. वो चाहता हूं तो देन वी कैन यूज दैट particular type system here. Okay, I hope it is clear to you all. Okay, now let me close this. अभी इसका काम नहीं है. हाँ, so again back to the work. Next.js देख लिया, GraphQL देख लिया कि हाँ GraphQL ऐसा वर्क. आप चल सबको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है. So I guess we have time now. भी टाइम है. Okay, nice. We can do that. ठीक है. बोर तो नहीं हो रहे हो ना कि बहुत सारी ज्यादा चीजें हो गई, कि क्या क्या समझा दिया आपने. प्लीज टाइप इन द comments so that I can see कि हाँ समझ तो आ रहा है ना, उतना थम्स अप कि हाँ चलो चीजें समझ आ रही है, नो इश्यूज. और जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को जावास्क्रिप्ट आती थी, Next.js आती थी, मेरे को इतना कुछ क्या बता रहे हो, तो इट इज फॉर बिगिनर्स. तो सारे लोग एक साथ चलने चाहिए, दैट्स द मेन कंसर्न. व्हाट अ कम्युनिटी डज इज कि एक साथ चलती हो. ओके, एंड समटाइम्स मेरे साथ भी होता है कि मैंने बेसिक्स तो सारे क्लियर करते हुए नई चीज देख रहा हूँ, उसमें मुझे कोई बेसिक कंपोनेंट ऐसा था जो मैंने उस टाइम बेसिक पढ़ा था तब नहीं था. तो जो भी अच्छे से जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं, इंटरमीडिएट हैं, उनको भी ये बहुत यूजफुल है कि उनमें उनका कोई पर्टिकुलर पोर्शन छूटा होगा तो अभी पता चलेगा कि अच्छा हाँ यार ये चीज तो मैंने देखी नहीं थी, चलो अच्छा वो मैंने ये वाला देख लिया. ओके, कूल. नाउ लेट्स deep dive into the function. अब चलो, अब we have to set up the GraphQL here. मतलब Next.js कर दिया, अब GraphQL सेटअप करते हैं. कैसे GraphQL सेटअप करेंगे? We have to set up 2 things here. क्लाइंट साइड भी करनी है, सर्वर साइड भी करनी है, ठीक है. अब मुझे बताओ, अब मैं लेट्स से सिंपल, ताकि एक आइस ब्रेकर हो जाए आपके लिए, मतलब कि आपने अभी तक क्या सीखा है, कि मुझे बताओ कि Next.js में बैकएंड जो होगा, जो सर्वर वाली चीजें होंगी, वो कौन से फोल्डर में रिसाइड करेगी. पुट इन द कमेंट्स, पुट इन द चैट. कहाँ होगा ये? कि उसकी जो पर्टिकुलर बैकएंड की जो सारी चीजें हैं वो कौन से वाले फोल्डर में. लेट्स सी कौन है, who is attending seriously. Let's see. Okay, we have one answer. Anyone else? Is Yash is saying correctly? If you are agreeing with Yash, okay, thumbs up. If not, then आप मुझे कह सकते हो.
Okay. Are we agreeing with Yash? He's saying API folder. Come on, guys. Okay. Okay, cool. Okay. ठीक है. Nice. So, Yash is saying correctly. We have the API folder which acts as server, and the other pages in the in the pages folder, like we have created hello and the underscore app, they are acting as client. Okay, so in the API folder we have to create the server wala GraphQL, and in the outside folder, in the pages folder, we have to create the client wala GraphQL. है ना, दोनों साइड हो देते हैं. GraphQL पे भी client पे भी GraphQL है, and we have server पे भी GraphQL. ठीक है? Okay, cool. So अब पहले अपन सर्वर पे करेंगे, क्योंकि अपन सर्वर पे ही नासा के एपीआई से डेटा ला रहे हैं फॉर इंफॉर्मेशन. सो लेट्स क्लियर दिस ऑल. ओके, हेलो को भी हटा देते हैं. हेलो इज अ मॉक डेटा, सो वी आर कीपिंग दैट थिंग. अगर आप नहीं रखना तो वी कैन डिलीट दैट, नो इश्यूज. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल first we have to install a thing. Now what is that? npm. We are installing npm Apollo server micro. Now see what is this Apollo server. GraphQL खुद में GraphQL जो थी उसको particularly रन करने के लिए we have a server there. GraphQL जो है वो particular एक layer है, उस चीज को रन करने के लिए we have Apollo. Apollo is a company which uses developed the Apollo server there. Okay, so they built Apollo server and we are using that, and the package name is Apollo server micro. So install that. It will take some time. Till then, let me show you what is Apollo. Apollo GraphQL. See the supergraph, a new layer in your stack. Supergraph is okay. See we have microservices. Means microservices stands for our backend, and then we have application which is our front end, and then in the Apollo we have GraphQL things here, the whole graph, and it is managed by Apollo. Okay, and for mainly produce graph Apollo. We'll see. We have Apollo client here. Apollo client we will be using. Okay, the bot uchalna band kare please. Okay, okay. See, we have our Apollo client here, which we will be using in client side of our app, which is Apollo client, and we will be using Apollo server in our backend. So in this we are using Apollo server in the backend. Any API folder we are using Apollo server to use the GraphQL, and in the client side we will be using Apollo client. Okay, cool. ठीक है. I hope it is clear to all. अब तब तक I will see कि install हुआ कि नहीं. Okay, it is installing. It will take some time. Okay. Till then, that's why it is named Apollo Server Micro. It is used for microservices. Now, जब तक install होता है, let me give a small introduction to microservices. Like microservices क्या है? See, Amazon जैसे हो गया, मतलब it's an additional information. It will help in your like अभी जब आप internships करोगे, आगे जाओगे, placements करोगे, then it will help कि microservices is a concept to divide a large application into small parts in a simple way, I can say.
लाइक सोचो अमेजोन है, अमेजोन में एक ऑर्डर का जैसे आपको कैटेगरीज दिखती हैं, आपको प्रोडक्ट्स दिखते हैं, यू हैव ऑर्डर, योर ऑर्डर्स दिखते हैं, योर विश लिस्ट दिखते हैं, है ना, और उसके बाद यू हैव पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की भाई हाँ ये ऑफर चल रहा है तो इसका पर्टिकुलर एक वेब पेज होगा, समझ रहे हो? तो उन सारी चीजों को अब एक कोड यानी एक फोल्डर में तो नहीं कर सकता मैं, इतना सारा कितना ज्यादा कंबरसम हो जाएगा, तो देन वी कैन डिवाइड इनटू सेपरेट मॉड्यूल्स, सेपरेट वेब एप्स, है ना। यानी मेरे को सिर्फ होम पेज का एक, फॉर एन एग्जांपल होम पेज का एक पर्टिकुलर ऐप, देन अबाउट अस पेज का एक पर्टिकुलर ऐप, तो वो दिन वो ऐप अपने आप में कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे, इस वजह से उनको मैंने दोनों अलग किए। सो दैट थिंग्स are called microservices, yani they provide a different service, they provide a different service but they are in micro level, yani wo particular task कर रहा है, ये particular task कर रहा है, and we are connecting them, the microservices to a one entity. Okay, so Apollo server are also used for that, but we having only one micro server, so we can also use that. I hope it is clear to you all about the microservices concept. Is completed. I think just something fluctuating or what? Okay, let me see. I guess module not found. See, अब एक और चीज आपने देखी होगी कि यहाँ पर the module not found जैसे ये दिख रहा होगा आपको, cannot resolve this is, तो see कुछ भी छोटा सा भी चेंज आ रहा है, इंस्टॉल भी करो, कुछ भी आ रहा है, it is re-entering itself and calculating all the things. So this is the power of Next.js. This is why you should use Next.js. Okay. So just wait, और जिसके अगर किसी के अभी जो कोई साथ में कर रहा हो, तो if he is getting any error you can say, and तब तक मैं पिछले वाला जो एरर था आई गेस दिव्यांश का था, किसी का उसका एरर तब तक रिजॉल्व करते हैं, जस्ट ए मिनट, तब तक इंस्टॉल नहीं हो जाता। ओके लेट मी सी, इट इज टेकिंग क्वाइट अ व्हाइल, आई डोंट नो व्हाई to install. Okay, they're trying a new directory or remove the files listed above. Next.js conflict. Oh, Divyanshu Mittal, for your information, you have already contains file that will conflict. Okay, clear that folder first. जो अभी तुमने इंस्टॉल किया ना, उस चीज फोल्डर को वापस क्लियर करो, सारी फाइल डिटेल फिर इंस्टॉल करो, क्योंकि ही इज सेइंग कि es.lintic.json next.config पहले से इंस्टॉल है, मतलब तुमने आधा इंस्टॉल पे रोक दिया था, this files were created and then you are installing it again, so it would conflict, it would not overwrite it. Okay, so you can use that, Divyanshu. I hope it will be clear. Okay, I mean there's something issue. Okay, it is started compiling, I guess now it is working. Excuse us. Okay, till then let me create that, अब वो जब तक इंस्टॉल होगा let me create the files here. So first of all I will be creating a GraphQL file here, so with me you can also create GraphQL.js. ठीक है, तो फर्स्ट जो इंस्टॉल है वो इंपोर्ट करेंगे, अपन इंस्टॉल से पहले इंपोर्ट कर रहे हैं अपन, हे स्मार्ट पीपल है ना, तो लाइक सी वी आर इंपोर्टिंग Apollo server. Now see, what does the curly braces means? Please, anyone in the chat जल्दी से लिख लो, ये जो curly braces है वो किस लिए है? मैंने curly braces जो लिखा import के बाद, what does that mean? Which import it does? वो import कौन सा है? Anyone? Okay, Ashwi answered the right. Okay, Yash also said okay. Name import. Okay, is it correct? Are you guys, are other guys are agreeing with them? Put a thumbs up. Come on, show some enthusiasm like you are attending the session. Yes, sir. Yes, this is. Come on. Okay. Cool. Aditya, Shashank.
Okay. It is taking quite a while now. I don't know why. Okay. Let me install. Let me import it. Apollo server here. After that, I will write from and what जो package का नाम था वो I will write that Apollo server micro. ठीक. Then after that, it will be see. अब यहाँ पर हम import करके रख देते हैं इस चीज को. So as I said कि we have type definitions in GraphQL which helps us to कि भाई particular मुझे name string में चाहिए, age number में चाहिए, सारी define करता है. तो let us know कि अपना data किस format में आ रहा है उस हिसाब से अपन करते हैं. ठीक है. तो अपन का data क्या है? Okay, it is installed. How? Finally. Okay. So अपना data कैसा आ रहा है? See, our data is coming. Okay, what did I do? API key. Demo key. I guess it is. हाँ, सी अपने पास क्या क्या कंडीशन, एक तो है कॉपीराइट आ रही है, एक अपने पास डेट आ रही है, एक अपने पास एक्सप्लेनेशन आ रहा है जिसमें इतना बड़ा वो पूरा दे एक्सप्लेन अबाउट द थिंग एंड देन वी कैन सी नेक्स्ट वी हैव मीडिया टाइप एंड आल्सो वी हैव एचडी यूआरएल हियर एंड वी हैव सम मीडिया टाइप हियर एंड तो इस चीज को थोड़ा अपन को एज ए टाइप डेफिनेशन अब हमारे इसके अंदर लिखना पड़ेगा. तो लेट्स सी कैसे. एक काम करते हैं GraphQL में. हाँ, one more package we have to install which is Axios. Now what does Axios does? npm is Axios. Axios used to perform get requests as get requests as put requests means all the HTTP requests are handled by Axios. Okay, either we can use that and either we can use fetch here. Okay, that's your choice. You can use anything. Okay, so if you are using if you don't using external packages, you can use that. There is not any issue. Okay, guys. So Axios. Oh, I guess it will take time. Okay, let it install. Yeah. So after that, as I said, we want type definitions and also resolver means okay, one more concept I guess I forgotten. Key, oh, it installs quickly. Nice. So one thing I have about the type definitions. Now type definitions collectively is called schemas. Schemas. So what does schemas mean is type definitions. That's nothing more, nothing less. Schemas are type definitions. Okay, means it works on particular type definition. It works on particular schemas. Both are same. And for that we will make a folder here in API. GraphQL के जहाँ पर था, we will make a folder here. Folder we will make schemas. Schemas here. अब इन schemas में हम एक फाइल बनाएंगे index.js. index.js. अब इधर अपने हमारे सारी टाइप डेफिनेशंस यूज करेंगे. सी अब कैसे यूज करेंगे, लेट्स so we'll be using first import GraphQL. We are using GraphQL means it's a query language. Then we have to perform query also. यानी आप कुछ भी get मतलब उसका यूज कर रहे हो, टाइप डेफिनेशन बना रहे हो, उसके रिजल्ट कर रहे हो, तो you have to use a query language. Now how to use the query language? By the use of GQL, and it is imported from Apollo. अभी एक बार के लिए देख लो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इट्स ओके, क्योंकि सारी चीजें नई एकदम से बता दी, बट इट्स ओके. एक बार देख लो कि हाँ ऐसी चीजें हो रही, तो बाद में आप जब खुद करोगे तो देन इट विल बी कुछ फास्टली कैचअप कि हाँ ये चीज थी. तो इंपोर्ट GQL हियर. I hope it is visible to all. And here I will write an export constant and एक बनाते हैं अपन सारे टाइप डेफिनेशन का टाइप डेफ्स. ठीक है, we'll be using here GQL. अब देखो लिखने का तरीका देखना. What I'm doing is GQL and I'm using fix. I guess it is visible to all. Plus करने I'm using here
GQL देन अ टिक्स। टिक्स आपके टैब के ऊपर वाला जो ऐसा टिल्ड है उसके जस्ट पास में एक टेढ़ा सा ऐसा है, तो वी आर यूजिंग दैट टिल्ड। ओके, तो इन द टिल्ड I can write the type here. Now how to define that thing? The type definition of how to define that type, सिंपल सिंटैक्स, जैसे फंक्शन लिखते थे फंक्शन, फंक्शन का नाम, तो इधर क्या टाइप डिफाइन कर रहे हैं, तो टाइप, टाइप का नाम। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, इट्स एन इमेज, इमेज, इमेज की डिटेल्स निकाल रहे हैं, इमेज ऑफ द डे, एस्ट्रोनॉमिकल पिक्चर ऑफ द डे, वी आर नेमिंग दैट इमेज। आफ्टर इमेज, नाउ व्हाट आर द डेटास वी आर गेटिंग, फर्स्ट क्लास कॉपीराइट, आई गेस कॉपीराइट। नाउ कॉपीराइट किस फॉर्मेट में था, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में था, नाइस। ओके, सो दैट तो अभी के लिए देखो, एक बार के लिए मैंने क्या लिखा, टाइप लिखा, उसका नाम, टाइप का नाम, फिर मैंने लिखा कर्ली ब्रेसेस, देन आई पुट इन ए की वैल्यू पेयर। अब ये की वैल्यू पेयर है, पर इस की वैल्यू पेयर में ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या स्पेसिफाई है कि की क्या अपनी कॉपीराइट, यानी एक वेरिएबल है, उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। ठीक है, कॉपीराइट का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। देन वी हैव डेट, डेट का टाइप क्या देखते हैं, डेट इज आल्सो इन स्ट्रिंग, एक्सप्लेनेशन वो भी स्ट्रिंग में ही है, तो दो चीजें तो ये होगी, तो लेट मी राइट दैट डाउन, स्ट्रिंग, ओके, टैग आ गया, explanation and इसका क्या था, hd url आई गया था ना, hd url जो कि स्ट्रिंग होगी। देन वी हैव टाइटल हियर, टाइटल थी उसमें, और अरे यार सॉरी, url स्ट्रिंग थी, मीडिया टाइप था कि वो कौन से मीडिया टाइप का है, इमेज है क्या है, वो भी एक स्ट्रिंग था। अपन को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता है ताकि कभी भी मीडिया टाइप कुछ और आ गया तो फिर अपन आगे तो एज ए स्ट्रिंग कुछ कर रहे होंगे और स्ट्रिंग के फंक्शंस उसमें डाल रहे होंगे और एकदम से नंबर आ गया तो फिर तो पूरा गलत हो जाएगा, तो इधर से वो एरर दे देगा कि नहीं भाई आप डाल ही नहीं सकते, स्ट्रिंग ही आ सकती है। ऐसा इट इज यूज्ड टू लाइक टू मेक योर कोड सेफर, कुछ अनहोनी ना हो जाए आपके कोड के साथ कि भैया नंबर आगे कुछ और फंक्शन रन कर गया तो पूरी आपकी वो कोड खराब हो जाएगा आपका, है ना, कोड का रिजल्ट पूरा आपका डेटाबेस के साथ कुछ हो जाएगा सब। तो दिस इज द definition of type definition of your image which is fetching. I hope I have covered all the, I guess, explanation, planet, okay, image here, media type कर दिया, service version कर दिया, title कर दिया, url कर दिया, hd url कर दिया, okay, cool. So we have completed all the things, ये हमारे सारे वेरिएबल्स हमने यहाँ कर दिए। अब 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 एक इंपॉर्टेंट बात आता है, दिस इज द टाइप। नाउ देयर कम्स अ थिंग कॉल्ड, तो देखो सिंपल क्वेरी लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज में कुछ क्वेरी होगी, मतलब आप क्लाइंट हो, क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट करता है, रिस्पांस आता है, हियर ग्राफक्यूएल के टर्म्स में भी यू विल से क्वेरी, कुछ क्वेरी करो, क्वेरी का कुछ रिजल्ट आ रहा है, तो देन क्वेरी के लिए एक फंक्शन होना चाहिए ना, सी ये डेटा है, इस डेटा को एक्सेस करने के लिए कोई फंक्शन होना चाहिए कि नहीं, जो कि ये चीज रिटर्न करे बाद में, है ना, राइट और नॉट, आर यू एग्री विद मी कि कुछ क्वेरी बनानी होगी जिससे ये रिटर्न होगी, तो व्हाट विल उस क्वेरी का टाइप क्या होगा, तो टाइप अपन की क्वेरी का नाम क्या, क्वेरी दे देते हैं, कुछ ज्यादा सोचने, यानी क्वेरी। अब क्वेरी के अंदर अपन बोलते हैं गेट इमेज, चलो इमेज है, इमेज को ले रहे हैं तो गेट इमेज एक वो है। अब ये गेट इमेज, अब ये भली फंक्शन हो कुछ भी हो, बट इट्स एन क्वेरी, है ना, एक क्वेरी है ग्राफक्यूएल की क्वेरी जो कि रिटर्न करेगी, क्या रिटर्न करेगी, ये पूरा का पूरा इमेज। आई गेस यू गॉट इट कि एक क्वेरी है, उस क्वेरी का नाम क्या है, गेट इमेज, गेट इमेज क्या रिटर्न करेगी, ये सारा इमेज। आई गेस इफ एनीवन हैव एनी, ओके ठीक है, हाँ ओके, सॉरी बट आई डोंट नो। सो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि ये चीज एक इमेज रिटर्न करेगी, तो व्हाट विल यू राइट इज इमेज। तो अब इस पोर्शन में आपको शायद समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने
डिफाइंड है इमेज टाइप, मैंने उसके पर्टिकुलर कंपोनेंट के मैंने सारे वो दे दिए. देन आई हैव रिटर्न अ query which will be running and the query name is get image and उस get image में will be returning an image. ठीक है. Now save this file. Now it is the schemas वाला part is done. ठीक है. Now let's move forward कि भाई चलो सर्वर बना लिया भाई आपने API में आपने अपोलो सर्वर माइक्रो तो इंस्टॉल कर दिया. आपने अब ग्राफक्यूएल के लिए जो टाइप डेफिनेशन चाहिए थी वो तो आपने डन कर दी. अब मैं फेच कैसे करूंगा? कुछ फंक्शंस होनी चाहिए ना, कुछ वो क्वेरी तो कैसे रन करो, उसके अंदर क्या फेच होगा वो कैसे पता चलेगा? फॉर दैट वी हैव अ टर्म कॉल्ड रिजॉल्वर्स. नाउ व्हाट इज रिजॉल्वर्स? लाइक एक बार नेम से देखो आप. रिजॉल्वर्स मींस इट विल रिजॉल्व योर क्वेरीज, यानी आप कुछ क्वेरी दोगे, आप उस क्वेरी का रिजॉल्वर उसको रिजॉल्व करके आपको देगा. You put a query, the server will identify the query, then the resolver will resolve it and give it to you. That's the basic functionality. See, तो उस चीज के लिए अपन क्या करेंगे? We have a separate folder in API में होगा सारी चीज जिसमें GraphQL है. ठीक है, कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं, सिंपल सा नाम दे दो भाई, रिजॉल्वर्स. ठीक है, ओके. नाउ इसमें भी index.js नाम दे दो भाई, रिजॉल्वर्स. अब यहाँ पर अपन को क्या होगा? अपन को इधर फंक्शंस बनाने पड़ेंगे जो कि इसको रिटर्न करेगा चीजें. ठीक है, तो व्हाट विल बी दैट? अब उससे पहले रिजॉल्वर्स तो कर ही रहे हैं. एक बार अपन देखते थे कि वहां से डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो वी विल बी राइट, पहले तो अपन करते हैं इंपोर्ट एक्सियोस एक्सियोस. ठीक है, अपना यूआरएल क्या था? यूआरएल अपन इधर डालेंगे. हाँ, वन मोर थिंग, इज एनीवन नोटिस कि मैंने टिक्स क्यों लगाए हैं? अब वो चीज का मैं बताता हूँ क्यों मैंने लगाए हैं. ठीक है, ये अपना यूआरएल था. ठीक है, अब यहां देखो, इफ एनी केस यू वांट टू पुट योर एपीआई की, मतलब ये तो डेमो की है. सोच लो आपको 1000 के बाहर भी चीजें चाहिए और आपके पर्टिकुलर एपीआई की के हिसाब से चाहिए, है ना? तो यू कैन पुट योर एपीआई की हियर. यानी इफ आई डिफाइन API की and I will put there कि ये डेमो की है. ठीक है, मैं हटा देता हूँ. अब मैं चाहिए कि भाई की जरूरत, तो अपन क्या कर सकते हैं? इफ एनीवन नोज जावास्क्रिप्ट, उसको पता होगा कि टिक्स लगाओ, स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग वो कैलकुलेट होगी, अंदर होगा अपन का डॉलर का साइन, देन ब्रैकेट्स. तो देखो कलर चेंज हो गया, मतलब अपन वहां वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं. वेरिएबल क्या अपना? API T. अब ये क्या करेगा? ये यूआरएल के अंदर क्या क्या HTTP ये API इज इक्वल टू व्हाट यू हैव पुट इन दिस. तो कुछ और नंबर करोगे तो वहां आएगा, ऐसे वेरिएबल चीज बन गई. ठीक है, फॉर दिस वी हैव यूज्ड, मतलब इनकेस आप अगर इन फ्यूचर आप API यूज करो तो यू कैन यूज दैट. एंड आफ्टर दैट, अब इधर क्या किया था जरा देखते हैं. अपन ने स्कीमास में क्या किया था? कॉन एक्सपोर्ट कॉन्स टाइप डेफिनेशन टाइप डेफ मान के कर दिया था. अपन क्या कर लेंगे? चलो रिजॉल्वर्स करते हैं. एक्सपोर्ट कॉन्स रिजॉल्वर्स. ठीक है, अपन यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे रिजॉल्वर्स. बिफोर दैट लेट मी सी इफ इट वर्क्स और नॉट. ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे कि भाई अपन की जो क्वेरी थी उसका नाम क्या था? चलो लेट्स सी, वी हैव स्कीमा हियर. क्वेरी का नाम क्या था? गेट इमेज. तो गेट इमेज अभी कैसे वर्क करेगा उसको डिफाइन करना है. वो ये इसका मतलब ना इमेज क्या है? इट विल रिटर्न इमेज. उसका रिजल्ट जो आएगा वो विल बी दैट. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ आएंगे अपन. ओके, नाउ हियर वी विल राइट की क्वेरी. ठीक है, क्वेरी
नाउ हियर वी विल राइट गेट इमेज जो थी अपनी, ये एक फंक्शन होगा जो कि async. ओके, नाउ अ गुड कॉन्सेप्ट कम्स इन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई लव दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज जावास्क्रिप्ट का मेन ये फंक्शनलिटी यही डिफाइन करती है कि व्हाट मेक्स जावास्क्रिप्ट डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग. दैट इज दैट async. JavaScript is an asynchronous language. Means you can do that ki task 1, task 2, task 3, task 4, task 5. There are 5 tasks. Task 3 takes more time. So in other languages like Python and all, you have to wait for that particular task 3 to complete, then you can move to task 4. But in JavaScript, it's not the case. In Node.js, I mean. In Node.js, you can simply skip that. Means अब वो चलने लग गया, task 3 is running, but it is in the background. वो अपने आप करेगा और अपने आप अपना काम कर लेगा, but you can simply move to task 4. So that makes, and उसके लिए अपन ये करते हैं कि भाई अगर get image है, get image में ऐसा कुछ है जो API request मार रहा है, API request उसमें टाइम लगती है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, उसमें तो टाइम लगेगा. तो उस टाइम को एसिंक्रोनसली चलाने के लिए, यानी साथ साथ में चलाने के लिए वी हैव गेट इमेज हियर. ठीक है. और अगर अपन एसिंक्रोनस नहीं लगाते ना और एपीआई रिक्वेस्ट करते, तो बाय डिफॉल्ट इसकी बिहेवियर क्या होता है कि वो उस रिक्वेस्ट यानी जो एपीआई रिक्वेस्ट मारे उसके लिए रुकेगा नहीं और आगे बढ़ जाएगा. अपन को ऐसा नहीं चाहिए. अपन को इस पर्टिकुलर केस में चाहिए कि भाई एक बार रुक जाए फिर वो डेटा भेजे. पर जावास्क्रिप्ट में कई जगह ऐसा यूज होता है कि ये जो चीज है उसके लिए ना रुक के आगे बढ़े. दैट्स व्हाई, क्योंकि वो कॉमनली वो यूज होता है कि भाई नहीं रुके, वो आगे के चले, एसिंक्रोनसली चलता रहे. दैट्स व्हाई दे यूज देम. ठीक है. बट यहाँ पर हमें कुछ synchronize करना है, तो उस वजह से we are using that async keyword here. So we will write try here. ठीक है. const image await. Now await का मतलब रुको भाई, means रुको for what? Axios dot get, sorry, and the URL is this, है ना. एंड एवरी ट्राई, अब देखो यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिखा है ट्राई. एवरी ट्राई स्टेटमेंट हैज ए कैच स्टेटमेंट. अब मैं बताता हूँ ये क्या होता है, कुछ ज्यादा इशू नहीं है. व्हाट इज ट्राई कैच? तो एरर. एक बार इसको देखते हैं. लेट्स सी इट इज वर्किंग ऑन व्हाट. सॉरी, कंसोल लॉग करते हैं. इसको इमेज हो क्या, हमारा रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है. इट इज इन एपीआई के अंदर, रिजॉल्वर के अंदर, इंडेक्स के अंदर. ठीक है. इज रनिंग सक्सेसफुली. लेट्स सी आ रही है कि नहीं. कंसोल में आना चाहिए ना. कंसोल अपना है यहाँ. सी फ्रंट एंड की जितनी भी फंक्शनलिटीज हैं उसका कंसोल लॉग होगा ब्राउजर पे, सर्वर की होगी यहाँ पर आएगा. ठीक है. एपीआई के अंदर क्या था? रिजॉल्वर. ओके लेट्स सी. इसको ये शायद अंदर नहीं घुसेगा आई गेस. वो बाहर लाते एक बार की. लेट्स सी, क्योंकि अंदर इट वर्क्स एज अ क्वेरी. अपन को देखने की डेटा आ नहीं रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा. आई हैव टू, क्योंकि देखो अवेट लगा है. अवेट शुड बी wrapped in a async function. So I'm writing export main asynchronous here, and इसको मैं डाल रहा हूँ अंदर. कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूँ. अगर बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है देन अभी बताता हूँ मैं क्या किया. कुछ ज्यादा कुछ लोड नहीं है. ठीक है. इंडेक्स वाली फाइल ना, मतलब सीधा उस पे. Let's see what it comes out. Okay, I guess it's an handler now. Oh, I guess we didn't lay out the, oh see it came. दिख रहा है ना सबको? The data we are getting here is copyright, date, explanation, HDURL. ये जो सारी चीजें we are getting here. Image में दिख रही है, यानी we have successfully fetched our data. मतलब जो एपीआई थी उसका एपीआई कॉल करके हमने डेटा तो डाल लिया. हम इसको सर्वर से GraphQL के अंदर डाल के देन वी आर सेंडिंग इनटू फ्रंट एंड. वी विल बी डूइंग दिस. ठीक है.
और अभी तक कुछ भी कोई भी पोर्शन कि भाई ये समझ में नहीं आया कि कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ ऐसा हो तो बता दो. यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स. थोड़ा चिल कर, थोड़ा ब्रेक करते हैं, लेट्स सी किसको कितना आया. आई मीन कुछ इश्यूज है अभी रिजॉल्व कर लेंगे अपन, वी हैव टाइम. सब कुछ कर दिया, उनमें कहाँ पे कौन सा पोर्शन वापस समझाना है, आई विल टेल दैट. यू कैन ओपन योर माइक और यू कैन पुट इन योर चैट्स कि भाई ये समझ नहीं आया. ओके, इट्स एन एरर. कुछ ये वाला पोर्शन की सर वापस समझा दो, ये थोड़ा इशू लग गया मेरे को. Okay. One query is isn't it unsafe to include the API query in query parameter? Okay, yeah, it's a good thing. See, well, there are some things we can say कि जैसे this is a public API. First thing, NASA is a public API and they are providing API keys for general purpose use. But उन्होंने इसलिए ये चीज include किया ताकि कोई mal practice ना, मतलब एक IP एड्रेस को ट्रैक कर सके. ठीक है, so for that you can use in the query. But when you are using private applications, when the information is confidential and you don't want to expose that, you can send into the you can send it as like in the body in which the request is you are doing, like उस URL में ना होके you are sending into through the body. And so you can use more good practices, like you can hash it from the like in the server side, then you can मतलब server side मतलब एक side से then hash करके वहां जाके same चीज से unhash कर दो, it will be more safe. As you can these things, you can use these things. Like any other query? It was a nice question, Aditya Sen. You have to all remember that कि ये API की तो चलो public इसलिए अपन यहाँ use कर रहे हैं, but for your particular bigger projects you have to use it in a safer way. Okay, any other queries? If you all want to ask, like इतना कुछ पढ़ लिया, अगर सब समझ में आ गया तो then put a thumbs up, नहीं तो ask the query. Let's see, कुछ भी Axios ये क्या होता है सर, ये async क्या है या wait क्या है, कुछ भी, come on. नहीं तो please react with a thumbs up. Excuses. Okay, am I audible or? I guess I'm audible. Shraddha ma'am, can you confirm I'm audible? Audible, sir. Okay, cool. Okay, nice. I guess none of you have any query. Let's move forward. So मैं वापस थोड़ा summarize कर देता हूँ. We have made the GraphQL there, मतलब उसमें type definitions अपने डाल दी. Then we have made resolvers, which are the function which will be. So we have again put that in try. Where will it be displayed? I didn't catch it. Oh, you mean this? See, मैंने इसको बाहर इसलिए लिया था क्योंकि ये जो okay, मैंने इसको बाहर इसलिए लिया कि this query will be run by the Apollo client, sorry, the GraphQL client. So it would be run in this ऐसा, इसलिए मैंने इस चीज को बाहर लेके किया. अब जो try catch होगा ना, उस try catch ब्लॉक जब get image call होगा, GraphQL जब client से करेगा ये get image, then it will run the try इसके अंदर जो भी constraints है वो. I hope I'm clear. Yeah, cool. ठीक है, that's fine. हाँ, तो let's move forward. Let's set up that thing. ठीक है.
अब देखो इसमें जितनी सारी चीजें, अब मैं क्या कह रहा था, सारी चीजें जो इमेज क्या था ना, ये सारी चीजें तो लिख लेते हैं, ठीक है। चलो लिखते हैं, चलो रिटर्न, क्योंकि गेट इमेज एक बार में सब रिटर्न करेगा, पर अपन को जो चाहिए वो क्लाइंट से अपन डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब अपन इधर से सारे रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि इसको बार बार कॉल करना नहीं पड़े। रिटर्न क्या कर रहा है, इट्स अ लिटिल लेंथी टास्क, ओके, copyright image dot data dot copyright date, sorry, just a few minutes, I'm just writing. Explanation, sorry, what is stuck again, just a second. Sorry for the interruption. Let me quickly write here. Title, image. URL, URL, and then what is this? Data, and then URL, media type. मतलब एक बार की मेहनत है, फिर then you will be like, क्या चलो अब जो चाहिए वो ले लेंगे अपन आगे। Image, then data, then media type. Okay, media type. Last cycle क्या बता था? Service version, okay. Service version, ठीक है। ये जो सर्वर सेटअप हो जाएगा, देन यू विल बी गेटिंग अ अमेजिंग थिंग, एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। लेट मी सी, अपार्ट फ्रॉम द सेशन एक चीज आपको भी बताऊंगा मैं, just wait for it. Okay, now we have resolver here and we have the schemas here. Nice. Now GraphQL can be set up. कैसे सेटअप होगा? So what, अब अपोलो सर्वर हमने बनाना था, अपोलो सर्वर में कुछ चीजें हमको पास करनी होती है। पहली चीज तो जो टाइप डेफ और बनाए थे वो इंपोर्ट कर देते हैं। Type defs are here and we are importing resolvers here. Resolver. Okay. One more thing I have to install here, which is CORS. चलो CORS क्या है थोड़ा बता देता हूँ कि what is CORS. CORS is cross origin resource sharing. Like what is cross origin resource sharing? 4 words are there. Cross, what is the cross? इधर से उधर cross. Origin. Now what does the origin mean कि particular domains, अलग-अलग domains, अलग-अलग web addresses, अलग-अलग जगह. Okay, cross origin resource sharing. Now what does resource sharing mean? कि आप उस एक पर्टिकुलर डोमेन या फिर एक आईपी एड्रेस या फिर एक जगह पर कुछ रिसोर्स होगी जो जिसको दूसरी जगह पे शेयर करनी। तो उस वजह से वेब जो था अपना www है, जो अपना है वर्ल्ड वाइड वेब, दे इंप्लीमेंटेड अ प्रोटोकॉल कि अगर क्रॉस ओरिजिन आपको मतलब एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन कुछ रिसोर्स शेयर करना है, मतलब सेम वेब एड्रेस के अलावा, देन यू हैव टू स्पेसिफाई इन योर फाइल। तो फॉर दैट थिंग वी आर डूइंग दिस, मतलब you can enable it कि कोई भी आके कॉर्स यूज कर सकता है, और यू कैन से कि पर्टिकुलर डोमेन आके कॉर्स मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि ये डोमेन ही कोर्स के लिए है, ठीक है। फॉर नाउ इट इज एन सिंपल ऐप, सो यू कैन से दैट कि हाँ इट इनेबल्स अस कॉर्स, ठीक है। तो उसके लिए अपन करेंगे npm micro कॉर्स, ठीक है।
micro cores. We'll be importing here cores from micro cores. होगा अब सर्वर क्रिएट करते हैं. Const Apollo server नाम देते हैं इसको. Now here a word new. New is a keyword. कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे. एक क्लास होता है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी व्हिच रिप्रेजेंट्स द होल क्लास. ठीक है. क्या ऑब्जेक्ट अपने पास ऊपर का अपोलो सर्वर ही है. इंपोर्ट किया ना ये अपोलो सर्वर. Now here we will having two things. See what are the things. The config में क्या चीज़ करेंगी. एक तो पहले तो type definitions which we have created there. Then there are resolvers which I have created there. यानी अपने टाइप डेफिनेशन बनाई है, वो सारी टाइप आ गई. रिजॉल्वर मतलब जैसे कैसे रिजॉल्व होगी वो आ गई. नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू लाइक जो कॉर्स क्रिएट किया था उसको हमने कॉल कर लिया इधर. या सॉरी कॉर्स. नाउ आफ्टर दैट देयर इज अ टर्म व्हिच वी हैव टू यूज हियर व्हिच इज एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉन्फिग. हर एक जैसे ये अभी है ना एपीआई है. एपीआई के अंदर अपन उसके अंदर फाइल्स बना रहे हैं. सो वी हैव कॉन्फ़िगरेशंस फॉर ईच पेज कि भाई उसमें क्या क्या चीजें डालनी चाहिए. तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ेगी ग्राफक्यूएल के लिए व्हिच इज बॉडी पार्सर. नाउ व्हाट इज बॉडी पार्सर. लेट मी राइट डाउन फर्स्ट. नए कॉन्सेप्ट है पर अच्छे दिस आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. एपीआई बॉडी पार्सर हियर वी आर मेकिंग इट फॉल्स. What does it mean? See, जब भी ये इधर रिक्वेस्ट्स आ रही थी रिस्पॉन्स में एक चीज आप देखना क्या थी. ओह आई एम सॉरी, इधर मैं बताऊं. देखो ये जो पोर्शन था ना, ये वाला स्क्रीन इज विजिबल आई गेस. ये वाला जो पोर्शन था ना जिसमें डेटा करके आ रहा था, जिसमें सारा डेटा आ रहा था, ये अलग अलग फंक्शंस आ रहे थे. देखो मैं स्टार्टिंग में ले जाता हूँ इसको. ये कहां पर गया, ये स्टार्ट हुआ यहाँ. What is this? This is a response. See, there is a status code. What is the status code? 200. What is the status text? Okay, and the response is okay. Now it has headers here. Headers के बाद it has, let's see, config here. The response has a config here too. उसके अंदर कौन सा URL है वगैरह वगैरह वगैरह. Then we have header here, and then blah 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 things, and main thing is we have data here जो get हुए. यानी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर थिंग्स सेपरेटेड है. तो ये सारी चीज क्या हुई है, पार्स करके इधर आई है. व्हाट डज पार्स मींस? पार्स मींस कि उसको की वैल्यू पेयर में बांट के उसने एज एन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट उसने दिया है. तो दैट इज कॉल्ड पार्सिंग. बट ग्राफक्यूएल में वो चीज अपन नहीं करते हैं. उसको एज ए जो बॉडी में जैसा आ रहा है वैज इट इज उसको चाहिए. तो दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग द एपीआई बॉडी पार्सर फॉल्स. यानी अब ये ऐसे बन के नहीं आएगा. मतलब अब बॉडी नाम की कोई एंटिटी नहीं होगी, वो पूरे रिक्वेस्ट में पहले से समाई हुई होगी. वो अलग से एज एन ऑब्जेक्ट बॉडी बन के नहीं आएगा. ओके, इसका मतलब ये है. नाउ वी हैव टू एक वेरिएबल बना देते हैं स्टार्ट सर्वर, और वी कैन राइट सी. अब अपन करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉर्स क्या था, ये ला कॉर्स के अंदर अपन पास करेंगे दो चीजें. अपन क्या कर रहे थे उसमें, जैसे कुछ भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन हैंडलर देन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स उसमें जा रहा था. बट नाउ इट इज ए मतलब कॉर्स इनेबल्ड like route. So we have to specify it is in the chords. ठीक है, chords के अंदर वो फंक्शन चलेंगे, क्या चलेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड उसमें क्या करना है वो तो अपन स्पेसिफाई कर देंगे. व्हाट इज डज इज इफ रिक्वेस्ट मेथड. चलो इसको छोड़ो, ये बाद में करते हैं. अपन क्या करेंगे, पहले अवेट अपोलो सर्वर था उसको स्टार्ट करेंगे. भाई तो सर्वर है ना, तो वो जस्ट स्टार्ट. ठीक है, अवेट इसलिए लगा क्योंकि इट विल टेक टाइम. इट इज एसिंक्रोनस, यानी अपोलो सर्वर स्टार्ट होने में तो टाइम लगेगा ना, तो वो टाइम फॉर वी आर अवेटिंग फॉर दैट. एंड देन
अवेटिंग अपोलो सर। अब देखो सर्वर स्टार्ट हो चुका, पर कहाँ स्टार्ट हुआ है? आई एम नॉट स्पेसिफाइंग दैट। फॉर दैट आई विल स्पेसिफाई क्रिएट हैंडलर एंड हियर आई एम स्पेसिफाइंग पाथ, अ पाथ वेयर द सर्वर इज स्टार्टिंग। तो कहाँ पर है? एपीआई के अंदर GraphQL है ना, ये तो फाइल का नाम है, बस उसको मैंने स्पेसिफाई किया है। और यहाँ पर क्रिएट हैंडलर के आगे वेयर पासिंग दैट रिक्वेस्ट्स एंड रिस्पॉन्स। एक बार वापस समझा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्स इसलिए डाला कि कॉर्स अपन ने इनेबल किया था, तो कॉर्स के अंदर सारी चीजें होनी चाहिए। जो कॉर्स है ना, ये कॉर्स, दिस कॉर्स के अंदर वी हैव द होल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला फंक्शन। So we have put the asynchronous here, and the function is this is arrow function. For who don't know about this, we can also write asynchronous function नाम वगैरह, but this arrow function what it does is, जो इधर का जो सारा सिस्टम है वो रिटर्न हो जाएगा इधर, वो इस arrow का मतलब रिटर्न है इधर से बेसिकली। Then we are awaiting to start. Then we are creating a handler where the GraphQL is exposed, and the path is API and then GraphQL slash API then slash GraphQL and जो लास्ट में था ना create handler के बाद में लास्ट में जो दो पैरामीटर्स हैं वो पास होगी कौन सी? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो फंक्शन में आ रही है, ये अपन को पास करना है, इसका सिंटैक्स। ओके, if I will save this and now let it compile, and if I now let me see GraphQL, अब मैं GraphQL की फाइल पे जाता हूँ, so let's see what happens. Is it working or what? tada, कुछ लिखा गाइस आपको? This is a admin dashboard, you can say, or an UI, you can say, or you can say a playground where we can test our server which we made. अभी तक सर्वर बनाया ना, उस सर्वर को अपन टेस्ट कर सकते हैं जो अपोलो प्रोवाइड करते हैं। तो we can simply go into query your server. See now something interesting comes out. अब यहाँ पर देखना वो जो इंटरफेस आएगा वो कैसा होगा। Okay. Let it load, थोड़ा सा धीरे हो रहा है। Student C. Okay, it is, चलो सब फायर कर देता हूँ इसका। So 2 मिनट इसको समझा लेता हूँ मैं क्या चीज है ये। यहाँ पर देखो होता है क्या है कि आपने सर्वर बना दिया, then you will go into Postman or something Thunder client and there will you test your API. But GraphQL के लिए क्या है? तो उसके लिए उन्होंने एक सैंडबॉक्स ये बनाया है जहाँ पर you can test your API, मतलब you can test your GraphQL server. So here see, अपन को जहाँ से मतलब है मैं वहाँ की बात करता हूँ। कुछ नहीं है, पहले तो ये देखना है कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। Okay, schema polling is an off. Something is wrong in our schema, I guess. Let me see what is this. What is that? Huh? Okay, error called start with supplying state started. Oh, okay, 4. Okay, cool. ठीक है, इस चीज को अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो स्टार्ट है ना, there is an issue with that. It is starting immediately. We can configure that by start server follow start and here writing start server। मतलब यहाँ immediately नहीं होगा, अब जब भी उसको चाहिए then it will start the server। यानी अगर मैं लिखता ना ये वाला पोर्शन यहाँ, then it will immediately put the await and start the server। but ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें रन होनी चाहिए, then it will start accordingly। so for that I have written in it in a variable। see, एक फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन कॉल को मैंने एक वेरिएबल में डाला। ओके, एंड देन वेरिएबल को मैंने अवेट में डाल दिया। तो देन वेरिएबल डज नॉट लाइक इग्नाइट इटसेल्फ, इट इग्नाइट व्हेन इट डज। तो उसके लिए हमने वो चीज कर दी। नाउ इफ आई सेव दिस एंड आई गेस अब कुछ एरर नहीं आनी चाहिए। लेट मी रीलोड कि अगर कुछ एरर है या नहीं। कुछ एरर तो नहीं है। ओके
Studio error खोलने दो. Diagnose something is there. Copy to clipboard. Let me see what is the error. Chalo. What is the error in it? Okay. Let me do this. क्या कह रहा है ये? With separation state call. I guess I have to restart this. npm run devs. Okay. Till then, let me check where it is something resolvers. Okay, Apollo server is here. It's micro we have created. Const cause is here. Server we have created. Apollo server start is here, and default cause is here. And it's okay. Something okay. Okay. In schemas, I guess nothing is wrong. There is a query and then get image and GraphQL is perfect. Okay, perfect. It is perfect. Schemas are perfect. Resolvers are perfect. Okay. API key is here. Const URL and get image is here. Try return await get. URL is here. Return is here. Explanation क्या media type है okay. ठीक है. Throw error. ठीक है. Nice. Okay. Log file was npm install version necessarily. Something is missing, I guess. Is patched or what? No schema pulling. And also please run. What is the error really? Okay. There is something issue with this. Until that mouse endpoint. Maybe there will be some. Okay. Let me start this again. Okay, let me do an npm install. Till then, if you are having any questions, please put it into your chat box. Okay, so we have again put that. Okay, that I guess that is resolved. There was something no. कुछ बाकी था क्या? Okay, nice. Guess it should work. So I guess the GraphQL part is somehow. Okay, create handler here is. So I guess I have to put this on. See what it happens. I will tell about this. Let me try. This method. Sometimes this error pops up. Options and the rest end. Return false. I will explain what it does is. I guess. Yeah. Okay. Let me run this all. GraphQL. Okay. Okay, it is running again successfully. Let me localhost 3000 GraphQL. I don't know why it is happening. I wish I had this point. थोड़ा सा टाइम लेने दो. Let it load. Till then, if there is any questions, please ask.
put in the chat box. Okay, now it's working perfectly. Yes, there were some issues with the. Okay. See, so in the left panel we can see the documentation part. There we have the query wala, है ना? तो यहाँ पर you can just click on the query, and then in the downside you have fields. So like we have to get the image here. You just click on the plus icon. Now in the plus icon you can specify which fields you are wanting. Like अब देखो वहाँ से सारी चीज आ रही है, सारी copyright date, explanation से लेके HTML से लेके title से लेके media type तक, ये सारी चीजें वहाँ आ रही है. If you want only the title of that particular thing, you can write the plus here, and now you can run the get image here. Now in the right portion you can get the response. Okay, you are getting an error. Okay, cannot read properties of undefined date. Okay, now what is this? Let me share here. Okay, now see what is happening here. Now this is a common error you will get everywhere. This is because you are accessing the value before it is fetching here. Okay, now the thing is here, it is saying cannot read properties of undefined date. Means date is coming but it is not defined. Like it is not fetching from the like the response or a part. So we will be looking into that. So how to solve that? See, in the resolvers where we are fetching that. Okay. I guess. Oh, see, there is an error. We have put image.date.date, which is not the right. It is data.date. This is a common error. Otherwise, you have to check if this type of error comes. You have to check this line where you are using await and you are using the asynchronous operations or. Okay. So now let's come into playground. And now again run that thing. Now see what happens. Okay, perfectly you get the galaxy by the lake. Now you got the title here, and now if you want the explanation, you can just tap the plus and you get the image and you can get the explanation. So see, आपने backend से सारी चीजें भेज दी, like इतनी सारी चीजें भेज दी, but in the front end you are selecting only these two things and bringing it on. So this is the power of GraphQL. Like they are, उसने एक बार में सब ले लिया है, but आप अलग अलग बार में अलग अलग चीजें fetch कर पा रहे हो. That's the thing. Okay guys. So I guess for today, I guess it is enough now, because you have like set up the Next.js. मतलब आपने Next.js and GraphQL वाला part मैं एक बार वापस revise कर देता हूँ जो आपने किया है from the start. What you have learned about Next.js. What is Next.js? Next.js is a React मतलब a framework or like a library, you can say collection of library which is based on React, and it is used for like static site generations and server side rendering, and it like it consists of fast reloading and all. And plus you have seen that how to create a next step, and then you have seen the folder structure there, and after that you have seen that how easy to create the pages in it. Like you have to just put a file name there, and you have to put the .js extension, and you've got that particular URL. Okay, that was the Next.js part, and after that you have the API folder, and there I have explained कि सर्वर लेस फंक्शंस क्या होती है जो अपन Next.js में प्रोवाइड करते हैं, जो सबसे अलग बनाती है Next.js. तो वो वाला पार्ट इज डन, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव लर्नड इज कि सर्वर वाले पार्ट में अपोलो सर्वर का यूज कैसे करें, अपोलो सर्वर माइक्रो से GraphQL कैसे सेटअप करें. तो फर्स्ट वी हैव डन कि स्कीमास में गए अपन, स्कीमास एक बनाया, मतलब ये एपीआई के अंदर स्कीमास बनाया, स्कीमास के अंदर हमने इंडेक्स बनाया. अब इसको जो अपन का रिस्पांस चाहिए था उसको अपने एक इमेज मतलब टाइप दे दिया, देन इमेज के अंदर सारी चीजें डालकर कर दी. देन फॉर इन द क्वेरी वाला पार्ट वी हैव गॉट द टाइप क्वेरी, देन गेट इमेजेस हियर, एंड आफ्टर दैट इन द resolvers are the functions which will be resolve your queries. Okay, now here we can see we have made an API की जो NASA की API है वहां से अपने API की यूज की, then API URL यूज किया with the help of Axios. Now what Axios does is Axios
गेट यानी गेट रिक्वेस्ट हमारी एग्जिस्ट गेट और इस यूआरएल पे यूआरएल मार दिया और उसने एक रिस्पांस दे दिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि बॉडी पार्सर को फॉल्स कर दिया था अपन ने। नाउ व्हाट बॉडी पार्सर डज इज कि जो आई गेस क्या बोलते हैं उसको, जो पर्टिकुलर अपना बॉडी में आते हैं, जो अपने मैंने बताया था जो डेटा की वैल्यू पेयर में आती है, तो वो वाली चीज नहीं आने के लिए डायरेक्ट ग्राफक्यूएल उस पूरी रिक्वेस्ट को यूज करता है। तो फॉर दैट पार्ट वी हैव मेड दैट फॉल्स। देन आफ्टर दैट अपन ने रिजॉल्व बना लिया। देन रिटर्न में हमने रिटर्न में यहाँ से देखो सर्वर में सारी चीजें भेज रहा हूँ, सारी A to Z सारी चीजें भेजे। एंड देन कैच के लिए कुछ भी मतलब ये ट्राई कैच वाला स्टेटमेंट है, इफ देयर इज एन एरर इट विल थ्रो एन एरर एंड व्हिच वी हैव सीन कि भाई कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज, तो वो इस वजह से आ रहा था। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव क्रिएटेड द ग्राफक्यूएल फाइल जिसमें अपन ने क्या किया था कि भाई टाइप डैश और रिजॉल्वर्स इंपोर्ट कर दिए थे। नाउ वी डन इज कॉर्स। नाउ मैंने कॉर्स बता दिया था, कॉर्स इज क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग की भाई अलग अलग ओरिजिन्स के बीच में रिसोर्स शेयरिंग करनी है, तो वी अलाउ दैट थिंग। तो फॉर दिस थिंग वी हैव अलाउड एनी क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग हियर। ठीक है, तो उसके लिए हमने कॉर्स वो बना, कॉर्स कॉल किया, देन इट कम्स इनटू कॉर्स छोटा वाला वेरिएबल। देन आफ्टर दैट we have exported that cause in the function inside that, okay, and then हाँ अब ये वाला जो पार्ट था बाकी था। now what it does is see जैसे भी कोई भी रिक्वेस्ट है इसमें मेथड्स आती हैं। अगर इन केस ये तो अभी की बात है, अब जब अपन आगे करेंगे तो अभी तो ये गेट रिक्वेस्ट आ रही है, कभी पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है। इन केस अभी कभी ऑप्शंस वाली आई कि भाई ऑप्शंस, और वो चीज बॉडी पार्सर जब अपन फॉल्स करते हैं तो वो नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन ने क्या करती है कि जब भी ऑप्शन देगा रेस्ट डॉट एंड कर देगा ना। व्हाट इज रेस्ट डॉट एंड, कि वो रिस्पांस एंड कर देगा और रिस्पांस एंड करके सब फॉल्स कर देगा चीजें। रिस्पांस एंड मतलब देखो इधर तो रिस्पांस में कुछ भेज रहा था मैं, है ना, यहाँ कहाँ भेज रहा था मैं, रिजॉल्वर में, मतलब सॉरी आई मीन हेलो में स्टेटस डॉट सेंड कुछ भेज रहा था। बट व्हेन इट कम्स टू एन ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शंस में कुछ मार रहे हो जैसे गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट ऑप्शंस रिक्वेस्ट मार रहे हो, तो देन जस्ट एंड दैट थिंग रिटर्न फॉल्स, और यहाँ वो चीज यूजफुल है। ठीक है, देन ये वाला जो क्वेश्चन था जिसको समझ नहीं आया, आई विल सेइंग इट अगेन, व्हाई वी वुड हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल हियर। इस वेरिएबल को दिस इज अ स्टार्ट, मतलब इनिशिएट कर, इसका इनिशिएशन अपन ने एक वेरिएबल में डाल दिया। नाउ व्हेनेवर दिस पर्टिकुलर हैंडलर calls itself, it particularly initiates when it needs। यहाँ पर वो सरप्राइजिंगली इनिशिएट हो रहा था, we got an error, okay। So for resolving that, we have put particular in a variable, and we have awaited for that. You done? Now for the next part, we have created the handler, like वो API के GraphQL वाले पार्ट में ही दिखे वो यहाँ पर आएगा, नहीं तो वो नहीं दिखता। बस वो सर्वर स्टार्ट हो तो कहाँ स्टार्ट होता भाई, है ना। We have to specify that thing. So for that we have Apollo server dot create handler, then path we have API GraphQL, and then we have passed the two parameters here, request and response। और लग रहा है कि भाई पूरा स्टेटमेंट एंड हो गया, फिर ये साइड में दो कर्ली ब्रेसेस करके रिक्वेस्ट, ये कौन सा सिंटैक्स है। So for your information, whenever you are using create, whenever dot after dot, if that create handler like passes any additional parameters, you can use that two brackets there, request and response, that's it, okay। So we have created this, and after that हम जब इसमें आए API GraphQL में, then it said कि query और server, then we have come here और interface खुल जाता है। There you can test your API और your GraphQL here, and उसमें आप देख सकते हो कि ये जो आप पर्टिकुलर सेलेक्ट करके सिर्फ जो पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, okay। I hope that it is clear to you all कि आज आपने क्या पढ़ा है सब। Okay, that's it from my side। I will hand over to Shraddha ma'am। Thank you very much, sir, for your valuable time and efforts. Today's session will be very helpful and beneficial for all the students. Many of us got to understand a completely new domain. All credit to you. Everyone, please take a note that we will meet again tomorrow for the second and concluding day of this workshop at 10 a.m. sharp. So we expect everyone to be on time. So before we end up with this meet, a request that
please turn on your cameras so our media team can take a snapshot. Everyone, please turn on your cameras. Subin sir, can you please stop sharing? Yeah, thank you, sure. sir. Thank you, sir. Yeah, now you can take screenshot. It's done, media team. Done, ma'am. Okay. So everyone can leave the meet now. I hope